بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہیومن رائٹس فیملی۔ آج جو ہم ناول شروع کر رہے ہیں اس کا نام ہے تیرے ہو کے رہیں گے بائے ریحانہ آفتاب۔ چلیے شروع کر لیتے ہیں۔ شانزے اسپیڈ سے گاڑی سڑک پر دوڑا رہی تھی۔ پچھلی گاڑی نے اوورٹیک کیا تو شانزے کو جیسے آگ لگ گئی۔ شانزے سے کوئی آگے نکل جائے، اس کی اتنی مجال۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی جبین سے کہتے اس نے گاڑی کی اسپیڈ بڑھا دی۔ اوورٹیک کرنے والی گاڑی کو خبر نہ تھی کہ اس نے شانزے کی شان میں کون سی گستاخی کر دی ہے۔ دیکھا، مجھ سے کوئی جیت کے دکھائے۔ جبین کو فاتحانہ نظروں سے دیکھتے اس نے پیچھے رہ جانے والی گاڑی کو دیکھا۔ اچھا، اب سپیڈ کم کرو، میرا مرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جبین اس سرفری کے ساتھ ڈرائیو پر آتے یوں بھی ڈرتی تھی، ہر 2 منٹ میں وہ ریس لگانے لگتی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سامنے پولیس موبائل کو دیکھتے شانزے نے کہا۔ ایک پولیس اہلکار ان کی گاڑی کو ہاتھ دے کر رکنے کا اشارہ کرنے لگا۔ غالباً کسی مخصوص کی تلاش ہے، یہاں سنیپ چیکنگ چل رہی ہے۔ روکو، اب یہاں کوئی تماشا نہ کرنا۔ جبین کے سمجھانے پر اس نے گاڑی سائڈ پر روکی اور گلاسز نیچے کیے۔ یس، اہلکار اس تک آیا تو وہ رونے سے بولی، سنیپ چیکنگ چل رہی ہے اور آپ نے گلاسز بھی بلیک لگا رکھے ہیں، اس کے خلاف کریک ڈاؤن چل رہا ہے۔ اہلکار کے کہنے پر وہ چلائی تو اہلکار نے بیچاری نظروں سے شہیر کی طرف دیکھا تو وہ ان تک آیا۔ آپ لوگ پلیز باہر آ جائیں، ہم بلیک گلاسز اتاریں گے، ایس پی شہیر نے سہولت سے کہا۔ آر یو میڈ؟ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ شانزے کی رونق دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ گاڑی کے پیپرز اور ڈرائیونگ لائسنس دکھائیں۔ وہ نیچے اتر آئیں تو اہلکار کو اشارہ کر کے وہ ان سے گویا ہوا۔ اشارہ پاتے ہی اہلکار گلاسز پر کام کرنے لگا۔ پیپرز پتہ نہیں کہاں ہیں اور ابھی میں 18 کی نہیں ہوئی، اسی لیے لائسنس نہیں بنا، وہ لاپرواہی سے بولی۔ ایس پی شبیر چراغ پا ہو گیا۔ اب جانتی ہیں فرد جرم عائد ہو سکتا ہے بغیر لائسنس گاڑی چلانے پر۔ سو واٹ؟ شانزے اسے سیریس نہیں لے رہی تھی۔ سر پلیز ہمیں جانے دیں، ہم بہت ایمرجنسی میں ہیں، فرینڈ کی مدد کو ہاسپٹل پہنچانا ہے۔ سب کسی چیز کا دھیان نہیں رہا۔ جبین نے جلدی سے جھوٹی کہانی گھڑی۔ فیمیل ہونے پر کوئی کارروائی نہیں کر رہا، لیکن آئندہ اس طرح کی لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے، اس نے سہولت سے کہا۔ شانزے کی نظر گاڑی پر پڑی تو وہ چوئنگ گم چبانا بھول گئی۔ ہاؤ ڈیئر یو! قانون کے تم جیسے رکھوالوں کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ شہر میں جرائم، دہشت گردی پنپ رہی ہے اور تم بیچ راہ میں شہریوں کو روک کر اپنا بکواس کام کر رہے ہو۔ جاؤ، جا کر ملک کو سدھارو پہلے۔ شانزے کی کڑوی کسیلی باتوں سے شہیر کے ماتھے پر بل آ گیا۔ میں آپ سے پڑھی لکھی اور ذمہ دار شہری کے ناطے تمیز سے بات کر رہا ہوں اور آپ اپنی اوقات دکھا رہی ہیں، کسی کی بگڑی اولاد لگتی ہیں اور ہمیں نہ سکھائیں ہماری ڈیوٹی۔ ہم آپ جیسے اے سی ہیٹر میں بیٹھ کر ملک اور سسٹم کو گالی دینے والوں میں سے نہیں ہیں۔ دن بھر جان ہتھیلی میں لیے پھرتے ہیں، دولت کے نشے میں چور۔ اب جانتی کیا ہیں پولیس فورس کے بارے میں؟ شہیر نے کھری کھری سنائی۔ تم جانتے نہیں میں کس کی اولاد ہوں؟ شانزے نے ہاتھ میں لیا فون استعمال کرنے کے لیے سیدھا کیا۔ شہیر نے جھپٹ کر فون لے لیا۔ بہت ہی فضول اور پرانا ڈائیلاگ ہے، جس کی بھی اولاد ہے گھر جا کر تسلی سے اپنے والد محترم سے بات کیجیے گا، بھلے وہ کوئی توپ چیز ہوں، مجھے میری ڈیوٹی کرنی ہے۔ شانزے، ہوش کے ناخن لو، کیا بکواس کر رہی ہو؟ جبین نے اسے قابو کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے فون چھیننے کی؟ خود کو جبین سے چھڑا کر وہ چڑھ دوڑی۔ اہلکار اپنا کام کر کے گاڑی سے نکل چکا تھا۔ شہیر نے کلائی سے پکڑ کر اس کی ہتھیلی پر زور سے فون مارا۔ زیادہ بدتمیزی کی تو جو تھوڑی رعایت دی ہے واپس لے کر تھانے لے جاؤں گا، میڈیا کو بلاؤں گا اور آپ کے خاندان کا نام روشن کر دوں گا۔ شہیر کی آنکھوں میں حد درجہ غصہ تھا، اس نے ہلکے سے پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ شانزے کو جانے وہ اس کی دھمکی سے ڈر گئی تھی، جو جبین کے کھینچنے پر چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ عروش کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا، وہ حد سے زیادہ نروس تھی۔ گلی کے اسکول سے میٹرک اچھے نمبر میں پاس کر کے قریبی کالج سے گریجویشن کی ڈگری لی تھی۔ وہ بہت ذہین اسٹوڈنٹ تھی، ہمیشہ اچھے نمبر لیتی تھی، تعلیمی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے محلے کے بچوں کو ٹیوشن دیتی تھی، قرآن پڑھاتی تھی، فارغ اوقات میں محلے والوں کے کپڑے بھی سیتی تھی۔ حیا صاحب گورنمنٹ ملازم تھے، گزر بسر بہت اچھی ہو رہی تھی۔ قناعت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی وجہ سے شکیلہ اس کے بیاہ کے لیے بھی جوڑ رہی تھی۔ شکیلہ خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے تھی، مگر میاں کی کمائی پر انہیں کوئی شرمندگی نہ تھی، دونوں ہی خوددار تھے۔ شکیلہ کی فیملی کے لاکھ چاہنے کے باوجود انہوں نے کبھی کوئی مالی مدد نہیں لی۔ عروش کی پرورش بھی انہوں نے اپنے حالات کو مد نظر رکھ کر کی تھی۔ اس کی فطرت میں ماں باپ کی تربیت کا ہر رنگ تھا جو اس کی شخصیت سے بھی جھلکتا تھا۔ فطری شرم و حیا، نامحرم سے حتی الامکان دوری اسے بہت ممتاز بناتا تھا۔ گرلز کالج میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اب اس نے مخلوط یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا۔ شکیلہ اور حیا صاحب کو عروش پر بہت بھروسہ تھا، اس لیے جب اس نے ماسٹرز کرنے کے لیے یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی بات کی تو انہوں نے انکار نہیں کیا۔ گریجویشن اس نے اتنے اچھے نمبر سے کلیئر کیا کہ تعلیم سے دور رکھنا اس کے ساتھ زیادتی ہوتی۔ یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہی ہر طرف رنگ و نور کا سیلاب تھا، اسٹائلش کپڑوں، امپورٹڈ جوتوں، بیگز، گلاسز سے مزین ہر کوئی کسی نہ کسی برانڈ کا ایمبیسیڈر لگ رہا تھا۔ اسے اپنی کم مائیگی پر کبھی شرمندگی نہیں ہوئی تھی، نہ وہ اس وجہ سے کنفیوز تھی، اتنے سارے چہروں کو ایک ساتھ وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی، خصوصاً لڑکوں کے بلند و باک قہقہے پر سر پر جمع دوپٹہ بار بار ٹھیک کر رہی تھی۔
क्लास भरी हुई थी। बैग मजबूती से पकड़े वो अंदर दाखिल हुई। बहुत कम सीटें खाली थीं। उस पर से उसके हुलिये पर कई एक ने ओ की आवाज़ निकाली। किसी ने सीटी बजाई, कुछ ने मुस्कुराने पर इत्तफाक किया, तो किसी ने आसारे कदीमा मोहिंजोदाड़ो कहना फर्ज समझा। तकरीबन सारी सीट पर लड़के काबिज थे और उन्हीं के पास जगह भी खाली थी। लड़कियों के साथ सारी सीट्स भर चुकी थीं। जो भी कहो, पर है गजब की बुढ़िया। पहली रो से आवाज आई। उसमें हिम्मत ना हुई कि उसे कोई जवाब दे। वो बैठने के लिए जगह दे रही थी जब उसी लड़के ने मिस प्लीज कहकर कहकहा लगाया। एक और लड़की भी कमरे में दाखिल हुई। उसी लड़के के साथ वाली पर बैठकर दूसरी चेयर उसके लिए घसीटने लगी। बैठ भी जाओ, कोई तुम्हारे लिए शाही कुर्सी नहीं लाएगा। उसने भी बैठने में आफियत जानी। नाम क्या है तुम्हारा? मैं रीदा हूँ। उस लड़की ने हाथ बढ़ाया। मैं अरूश हूँ। उसने हाथ थाम लिया। अच्छा नाम है। मायने क्या है? उसे शायद बोलने की बीमारी थी। अरूश को कोफत होने लगी। जन्नत का फरिश्ता, नाचार उसे बताना पड़ा। हे गाइस लिसन, शी इज एंजल ऑफ आवर क्लास। वही लड़का अपने साथियों से कहकर कहका लगा रहा था। लेक्चरार के आने पर सब खामोश हो गए। अरूश ने सोच लिया था वो रिदा की किसी बात का जवाब नहीं देगी। जबीन को उसके घर ड्रॉप करके वो पार्किंग पर आकर रुकी। बाहर निकली। साइड में लोहे का रोड था। उसने वो रोड उठाया और उस वक्त तक पीछे ना हटी जब तक गाड़ी डैमेज ना हो गई। शोर पर मुलाजम और सिक्योरिटी एहलकार भागे चले आए और लफ्ज़ ये शांसे की कारगुजारी देख रहे थे। डैड कहाँ है? अंदर की तरफ जाते उसने इश्तियाक से दरियाफ्त किया, जिसके पास घर के एक बंदे की रिपोर्ट होती थी। कौन कब कहाँ होता है? सर 2 घंटे पहले मीटिंग के लिए इस्लामाबाद गए हैं मैम। वो सर झुकाए उसके साथ साथ चल रहा था। कब तक आएंगे? वो तेज तेज बोल रही थी। इश्तियाक भी कदम से कदम मिलाने पर मजबूर था। कल शाम तक आएंगे। भाई कहाँ है? अगला सवाल हुआ। वो अपनी पर्सनल एक्टिविटी के लिए निकले हैं। सुबह वापसी होगी उनकी। कोई प्रॉब्लम मैम? वो उसके गुस्से की वजह जानना चाह रहा था। मैं डैड से ही बात करूंगी। शाम से अपने कमरे की तरफ मुड़ गई। मैम गाड़ी का क्या करना है? सर्विस के लिए भेज दूं? वो अपनी ड्यूटी निभा रहा था। नहीं, उसे वहीं रहने दो। पोजीशन भी ना बदलना। उस पर नजर पड़ती रहेगी तो इंतकाम लेने में मजा आएगा। शांति ने गुस्से में कहा। ओके मैम। बेतासुर चेहरे के साथ इश्तियाक मुलाजमों को गाड़ी से मुतल्लिक हदायत देने चला गया। एसपी शहीर, तुम्हारी तो मैं वर्दी उतरवा के दम लूंगी। अपने कमरे में दाखिल होकर जूते हवा में उछालते बेड पर गिर गई। तस्हीक के एहसास से वजूद सुलग रहा था। 2 कोड़ी के एसपी की इतनी मजाल। करवट बदलती वो सख्त बेचैन थी। यूनिवर्सिटी से घर तक 1.5 घंटे का सफर था। वो निढाल हो गई थी। पहला दिन तारुफ और क्लासेस की टाइमिंग और लेक्चरार के इंतखाब में ही गुजर गया। उसकी सूरत देखकर शकीला की जान में जान आई। इतनी दूर तालीम के लिए पहली बार घर से निकली थी। रोज इतनी ही देर हुआ करेगी। घड़ी 4 बजा रही थी। पानी का गिलास समाते शकीला इस्तफसार कर रही थी। जी, मैंने इन्हीं लेक्चरार की क्लास का इंतखाब किया है जिनकी टाइमिंग जल्दी है। पानी पीने के बाद जवाब दिया। कैसा रहा पहला दिन? माँ बेटी दोस्तों की तरह थी। स्कूल कॉलेज से वापस आकर वो सारे दिन का अहवाल सुनाती थी। बहुत अलग दुनिया है अम्मी। मुझे लग रहा है मैंने मास्टर्स करने का फैसला गलत किया है। प्राइवेट भी कर सकती थी। वो पुरसोच आवाज में बोली। आज पहला दिन था, आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाओगी। इतना लंबा सफर तुमने पहले किया नहीं ना, इसलिए परेशान हो गई हो। शकीला ने मोहब्बत से कहा। थकन उसके सभी चेहरे से जाहिर थी। अपनी हसीन बेटी उन्हें बहुत अजीज थी। अजीज तो हर बच्चा होता है, मगर जो मान फख्र गरूर बन जाए, जिसकी वजह से लोग माँ बाप की तरबियत की तारीफ और तौसीफ करें, वो बच्चा अजीज जान हो जाता है। खाना खाकर आराम कर लो। जी मैं फ्रेश होकर आती हूँ। आपने भी नहीं खाया होगा यकीनन। उसने झूठी खपगी से देखा। वो मुस्कुरा दी। ये भी कोई पूछने की बात है? तुम बाहर थी तो मेरे हलक से नवाला कैसे उतरता? मुझे तो देर हो जाया करेगी। आप खा लीजिएगा। कल से इतनी देर तक भूखी रही तो मैं नाराज हो जाऊंगी। वो तंबीह करती चेंज करने के ख्याल से कमरे में चली गई। उसे माँ की मोहब्बत पर मान था। उसे अपने बाप भाई पर बहुत मान था कि अगर वो भी होते तो शहीर की बोटियां हो चुकी होती, मगर उसे कल का इंतजार था। जबी आई हुई थी और उसे शॉपिंग पर चलने के लिए इसरार कर रही थी। जब तक मैं एसपी शहीर को उसकी औकात याद ना दिलाऊं, मुझे चैन नहीं आएगा। ये बात इतनी अहम नहीं है। मैंने तुम्हें कल भी समझाया था और तुमने गाड़ी का भी हशर कर दिया। देख कर आ रही हूँ मैं। जबीन उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। भाई को बता देती तो ऐसा ही हशर अभी तक शहीर का भी हो चुका होता। डैड से कहकर उसकी वर्दी उतरवाऊंगी जिसका बहुत रौब जुमा रहा था। शान से अपने मौकफ से पीछे हटने को तैयार न थी। जबी ने हार मान ली। भैंस के आगे बीन बचाने वाली बात थी, जो वो ठान ले वो करके ही दम लेती थी। सी व्यू चलते हैं। डैड के आने तक अगर मैं इसी माहौल में रही तो खुद को भी शूट कर लूंगी। शॉपिंग फिर किसी दिन करेंगे। शानसे के प्लान पर जबीन सर हिलाती मैगजीन के वर्क गर्दानी करने लगी। शानसे ने कपड़े निकाले और चेंज करने चली गई। थोड़ी देर में वो सी व्यू पर थी। मेन रोड छोड़कर वो कच्चे पर उतर आई। दाएं बाएं आगे पीछे गाड़ी दौड़ाती वो सी व्यू के आखिरी पॉइंट तक चली गई थी। तेज म्यूजिक सुनती शानसे रिलैक्स होकर गाड़ी बंद करके बैठ गई। शानसे बहुत अंधेरा हो गया है, चलते हैं। जबीन ने बर्गर खाते इधर उधर नजर दौड़ाते कहा। लोगों का हजूम बहुत पीछे रह गया था।
मुंह बंद रखो, इंजॉय करने दो, मुश्किल से मुंह ठीक हुआ है, दोबारा ऑफ मत करना, बहुत डरपोक हो तुम। आंखें मूंदे शांति ने नागवारी से कहा, हूँ मैं डरपोक? मेरे वालिद मिल ऑनर है, तुम्हारी तरह मेरी रगों में सियासी घराने का खून गर्दिश नहीं कर रहा। जबीन ने मुंह बसोरते कहा। उसी वक्त दरवाजा खोलकर किसी ने जबीन को ड्राइविंग सीट की तरफ धकेला। गियर पर गिरती जबीन की चीख बेसाख्ता थी। असला बरदार शख्स जबीन की सीट पर काबिज हो चुका था। एक और शख्स पिछली सीट पर बैठकर उन दोनों पर गन ताने बैठा था। अगर शोर मचाया तो दोनों की खोपड़ी उड़ा दूंगा। लड़की, गाड़ी चला, जिस तरह तू पिछले 1 घंटे से चला रही है। शांजे के भी आसान खता हो चुके थे। खौफनाक चेहरे वाला शांजे की पसली में गन घुसाकर बोला, क्या चाहते हो? शांजे ने हवास बहाल किया। जबीन उसके साथ लगी कांप रही थी। अपने घर खोलकर और 50 लाख मंगवा आधे घंटे के अंदर। दोनों आगाह हो चुकी थी कि वह शॉर्ट टर्म अगवा का शिकार हो चुकी हैं, जिसमें किडनैपर आधे घंटे तक सड़कों पर गाड़ी दौड़ाकर रकम निकलवाता है और फिर चलता बनता है। शांजे ने आदर्श को कॉल की। भाई, मैं और जबीन सी व्यू पर हैं। शॉर्ट टर्म किडनैपर ने आधे घंटे में 50 लाख की डिमांड की है। शांजे के बोलने पर आदर्श धाड़ा कि तुम्हें धज्जियां उड़ा दूंगा। ज्यादा बड़कियां ना मार और पैसों का इंतजाम कर। सेल फोन करीब करते साथ बैठा बंदा रोब जमा कर बोला, तूने नौरोज अली खान की बेटी और आदर्श अली खान की बहन को अगवा करने की जुर्रत की है। तेरी नस्लें इस हमाकत का तावान भुगतेंगी। आदर्श की धाड़ पर किडनैपर के औसान खता हो गए। वो सियासी घराने से ताल्लुक रखती थी। अगर इन्हें खबर होती तो वो कभी इस तरह की हमाकत न करते। लूट मार और इस तरह की वारदात के लिए यह इलाका आसान हदफ था। यहाँ इससे पहले भी वो कई वारदात करके करोड़ों रुपए हासिल कर चुके थे। अमीरों की बिगड़ी औलाद इसी तरह गाड़ियों में मौजूद होती थी और वो उनकी तन्हाई का अच्छे से फायदा उठाते थे। अब क्या करना है? पीछे वाले ने डरते हुए कहा। निकल चलते हैं, आगे वाले ने कहा। लेकिन ये दोनों हमें पहचान चुकी हैं, पीछे वाले ने एहसास दिलाया। है तो सियासी घराने का गंदा खून, हमारी जान थोड़ी छोड़ेंगे। ऐसा करते हैं, दोनों को मार देते हैं। पीछे वाला गन लोड करते बोला। दोनों की जान हलक में आ गई। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, प्लीज हमें ना मारो। शान से हाथ जोड़े गिरा रही थी। सारी बहादुरी करोफर धरी की धरी रह गई थी। इन्हें छोड़ना गलती होगी, जल्दी फैसला करो। पुलिस तो बाद में, पहले इसका खानदान हमें पाताल से ढूंढ निकालेगा। इनके तवस्सुस से पीछे वाला मुसलसल सामने वाले को समझा रहा था। तू ठीक कह रहा है। सामने वाला राजी हो गया। दोनों को अपनी मौत नजर आने लगी। मेरा ताल्लुक सियासी घराने से नहीं है, मुझे जाने दो प्लीज। जबीन के हाथ जोड़ते शांजे को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसे अपनी मौत यकीनी नजर आ रही थी। कबीरा और सगीरा गुनाहों की माफी मांगते उसने कलमा पढ़ लिया। जिस नाम पहचान पर उसे घमंड था, नाज था, वही उसकी मौत की वजह बन गया था। गन उसकी कनपट्टी से लगा हुआ था। वो चारों इर्द गिर्द से गाफिल हो चुके थे। गन नीचे करके बाहर निकलो। शांसे की आंख आवाज पर खुली। किडनैपर के बाजू को मरोड़कर किसी ने पीछे किया हुआ था और एक गन उसकी कनपट्टी से लगी हुई थी। पीछे बैठे बंदे को भी दीगर लोग काबू कर चुके थे। बाहर निकले सब। पुरजोर आवाज पर शांसे और जबीन भी कपकपाते पैरों से बाहर निकली। शांसे फटी फटी आंखों से इंस्पेक्टर शहीर और पुलिस के जवानों को देख रही थी। हेडलाइट की रोशनी में किडनैपर्स उनके नरगे में थे। कई महीनों से इन्हें इस मुकाम पर वारदात की इत्तला मिल रही थी। इस गैंग के पीछे वो काफी दिनों से लगे हुए थे। ब्लैक कार को वो काफी देर से वॉच कर रहे थे। इन्हें इस गैंग की कार्रवाई का ही इंतजार था। जब उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू की तो शहीर और उसकी पार्टी एक्शन में आ गई। दोनों को मोबाइल में बिठाया जा चुका था। शहीर उसकी तरफ आया। इतनी रात को इस अंधेरी जगह पर आप लोग क्या कर रही थी? वो आते ही चिल्लाया और जब उसकी नजर दोनों के चेहरे पर पड़ी तो वो और गुस्सा हो गया। आप दोनों को घर पर चैन नहीं है? ये मुकाम और ये वक्त मुनासिब है लड़कियों के लिए? वो खशमगी निगाहों से घूर रहा था। सर, हम तफरीह के लिए आए थे। जबीन ने बोलने की सही की। बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए आप लोगों को चलना पड़ेगा पुलिस स्टेशन। शांसे खामोशी से शहीर को देख रही थी। उसी वक्त कई गाड़ियों के टायर चिरचिराए और खटाखट दरवाजे खुले। शहीर और अहलकार अलर्ट हो गए। गार्ड्स फैल चुके थे। जदीद असलहे से लेस वाइट क्लफ लगे सूट में मलबूस आदर्श अली खान जीप से निकला। कहाँ है वो किडनैपर्स? आदर्श शांजे को साथ लगाए खड़ा इस्तफसार कर रहा था। शहीर और दीगर अहलकार आदर्श अली खान और गार्ड्स की फौज को देखकर मुताज्जिब थे। शहीर को याद आया कि कल वो अपने वालिद का जिक्र तो करना चाह रही थी। उसने लंबी सांस छोड़ी और आदर्श को भगौर देखने लगा। क्या मामला है? आदर्श शहीर की तरफ आया। शहीर उसकी रौनक और अंदाज से किस कदर नाला नजर आ रहा था। उसने वाकये की तफसील गोशगुजार की। सच कह रहा है ये? आदर्श शांजे से बात कर रहा था। शहीर का खून खोल उठा। इन समाजी कारकुनों की असलियत से वो अच्छी तरह आगाह था। जी भाई, अगर ये खुशकिस्मती से आज इस गैंग को टारगेट ना कर रहे होते तो आज मैं जिंदा ना होती। शांजे ने सच्चाई बताई। कहाँ हैं वो दोनों खबीस? लेकर आओ, मैं खुद उन्हें शूट करूंगा। आदर्श ने शहीर को जर खरीद गुलाम की तरह हुक्म दिया, जैसे वो गवर्नमेंट का नहीं उसका मुलाजिम हो। सर, वो पुलिस स्टेशन मुंतकिल हो चुके हैं। अगर यहाँ होते भी तो मैं आपको ये शौक पूरा करने की इजाज़त नहीं देता। कार्य सरकार में किसी को मुदाखलत की इजाज़त मेरे सामने नहीं है। तो उस लहजे पर आदर्श ने बगौर उसे देखा। गाल बन, नई पोस्टिंग है, नया जोश है, तब ही तेवर भी दिखा रहे हो।
आदर्श ने तंजिया मुस्कुराहट से कहा, भाई उन्होंने मेरी जान बचाई है, आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। शांजे ने उन्हें भिड़ते देखकर कहा, चलो तुम्हारे सदके माफ किया, वरना मैं इस लबो लहजे का आदी नहीं। आदर्श शांजे को बाजू के घेरे में लिए आगे बढ़ गया। सर, बयान रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा बीबी को, अहलकार ने मुअद्दबाना कहा। घर भेज देना बंदे को। आदर्श हुक्म सुनाता जीप में बैठ गया। पूरे क्रोफर से उसका काफिला सेकंड्स में मट्टी उड़ाता चला गया। सियासत की नाजायज औलाद, पुलिस को घर की लौंडी समझे बैठे हैं, एहलकार ने नागवारी से कहा। शहीर मोबाइल की तरफ बढ़ा। अच्छाई की तवक्का इन जैसों से रखना अबस है। शहीर की राय अच्छी ना थी। अरूश की राय में आज का दिन बहुत थका देने वाला था। खाना खाकर वो आराम की घर से लेटी ही थी कि ट्यूशन पढ़ाने वाले बच्चे आ गए। आज छुट्टी दे देती। सिलाई मशीन संभालती शकीला उसकी थकन के पेश नज़र कह रही थी, बच्चों के पेपर्स होने वाले हैं, हर्ज होगा उनका। एक दिन से क्या हो गया, रोज़ की थकन होगी, मैनेज करना पड़ेगा। यमुना का सूट भी अधूरा था, वो भी सीना है। बोलते बोलते उसे पड़ोसन का सूट याद आ गया। मैंने कर दी, तरपाई रहती थी खाली, वो तो ले भी गई सूट, शकीला ने जवाब दिया। वो सर हिलाकर बच्चों की तरफ मुतवज्जा हुई। कई घंटे गुजर गए। बच्चों की शिफ्ट बदलती रही। हर घंटे पर पहले वाले बच्चे चले जाते और उनकी जगह नई क्लासेस के बच्चे ले लेते। दरमियान में उठकर उसने चाय भी बना ली। 8 बजे फारिग हुई तो वो रोटी बनाने किचन में चली आई। शकीला मना करती रही, मगर उसे एहसास था कि उसकी गैर मौजूदगी में शकीला पर काम का बोझ बढ़ गया था। हयात साहब भी आ गए तो तीनों ने साथ खाना खाया। गवर्नमेंट जॉब के बाद वो दोस्त की कपड़ों की शॉप पर चले जाते थे। कैश काउंटर उनके अंडर था। दुकान में मौजूद लड़कों से काम करवाना उनकी जिम्मेदारी थी। उनके दोस्त की 2 शॉप थी, एक की देखभाल वो खुद करते थे। हयात साहब दिन भर की रोदात पूछ रहे थे, लगन से पढ़ना। बेटी के सर पर हाथ फेरकर वो सोने चले गए। दिन भर की थकन उनकी चाल से नुमाया थी। बर्तन धोकर किचन समेटकर वो अपनी जगह सोने के लिए लेटी तो दुखती कमर ने दुहाई दी। सुबह यूनिवर्सिटी जाने के ख्याल से उसे वो लड़का याद आ गया जो बार बार कमेंट पास कर रहा था। उसे वो जरा अच्छा ना लगा था। हेलो एंजल। अरूश तेज तेज कदमों से क्लास की तरफ जा रही थी जब वही कल वाला लड़का उसके साथ चलने लगा। उसने थोड़ी के पास से सर पर ओढ़ा दुपट्टा मजबूती से पकड़ लिया। चेहरे पर नागवारी आ गई। उसकी जुर्रत हैरान करने के साथ परेशान भी कर रही थी। जाने क्यों उसने उसका पीछा ले लिया था। उफ, मिडिल क्लास अदाएं। वो और उसके साथी हंसने लगे। वो तेज से चलते उनसे पहले क्लास में दाखिल हो गई और पहली खाली सीट पर जल्दी से बैठ गई, जैसे मजीद टांगों में जान ना हो। क्या हुआ? बेदहानी में वो रिजा के साथ बैठ गई थी। वो उसकी उड़ती रंगत पर इस्तफसार कर रही थी। इतने में वो उसके साथी अरूश को देखते कहका लगाते सामने से गुजर गए। कुछ किया इन लोगों ने? अरूश के चेहरे से नागवारी जाहिर थी। रिजा इस्तफसार कर रही थी। उसने कोई जवाब न दिया। वापसी में वो रिजा पॉइंट की तरफ जा रही थी जब रिजा हस्बे मामूल बोलने लगी, बच के रहना, आदर्श अली खान नाम है, नौरोज अली खान का बेटा है, पूरा खानदान सियासी है, असर वसूख इनके घर की लौंडी है। मुझे भी कल ही इसका तारुफ सुनने को मिला है। रिदा उसे इत्तला दे रही थी। अरूश मजीद हरासा नजर आने लगी। अंदाज से जान तो गई थी कि किसी की बिगड़ी औलाद है, मगर उसकी जड़ें इतनी गहरी होंगी अंदाजा ना था। उसके पास तो बहुत पैसा होगा, फिर कराची की यूनिवर्सिटी में क्या करने आया है? सियासतदानों की औलादें तो बाहर ही पड़ती हैं। डर कर छुप कर उसने कहा। इसका बेहतर जवाब तो यही दे सकता है। रीता कंधे उचकाकर शटल की तरफ मुतवज्जा हो गई। स्टूडेंट्स का काफिला शटल में सवार हो रहा था। उनका काफिला पहुंचा तो नौरोज अली खान भी उन्हें पार्किंग में मिल गए। उन्होंने हैरानी से शांसे, जबीं और आदर्श को साथ आते देखा। कहाँ से आ रहे हो? उन्हें गैर मामूलीपन का एहसास हुआ। आदर्श ने किस्सा मुख्तसर सुनाया। सिक्योरिटी गार्ड्स के बगैर तुम क्यों निकली? वो शांजे पर गुस्सा करने लगे। जब ही इस मंजर में मिस फिट थी वो साइड पर हो गई। शांजे से कोई जवाब ना मिला तो इश्तियाक जेर अताब आया। सर, शांसे बीबी ने न सिर्फ आज बल्कि कल भी मुझे और गार्ड्स को साथ ना ले जाने पर सख्त बातें सुनाई थी। मैंने बहुत कहा था। इश्तियाक सर झुकाए कह रहा था, नेक्स्ट टाइम अगर इस किस्म की लापरवाही दोबारा हुई तो मैं तुम सबको शूट कर दूंगा। वो आपे से बाहर हो रहे थे। ये गाड़ी की क्या हालत हो रही है? उनकी नज़र शांजे की चहीती गाड़ी पर पड़ी। इश्तियाक मदद तलब नजरों से शांजे को देख रहा था। डैड तंग कर रही थी तो मैंने गुस्से में ये हाल कर दिया। शांजे के जवाब पर नौरोज मुतमईन हो गए। फेंक दो गाड़ी को, हुक्म देते वो अंदर की तरफ चलने लगे। शांजे और आदर्श नौरोज के साथ थे। वो तीनों लाउंज में बैठ गए। इश्तियाक मुअद्दब खड़ा था। गार्ड्स फासले पर मौजूद अलर्ट थे। शांजे, तफसील बताओ जो कुछ हुआ। सिगार सुलगाते वो बारीकी से तफसील सुन रहे थे। डैड, एसपी कुछ ज्यादा एटीट्यूड दे रहा था। नौरोज ने गोश गुजार किया। शांजे की जान बचाकर एहसान किया है उसने हम पर। इश्तियाक, कल बुलवाओ उसे, घर में मिलना चाहता हूँ। आदर्श को समझाकर इश्तियाक को हदायत दी। ओके सर। इश्तियाक सर हिलाकर रह गया। कल सारा दिन लंगर तकसीम करो, 20-30 बकरों का सदका दो। शांजे बाहिफाजत आ गई है। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें भी ना बख्शता। तुम कहाँ थे जब ये लापरवाही हो रही थी? इश्तियाक को हदायत देकर वो आदर्श से तफ्शीश कर रहे थे। वो किसी कदर बौखला गया। नफी में सर हिलाते वो जान गए वो अपनी रंगीनियों में मगन था। शांजे, आइंदा तुम गार्ड्स के बगैर नहीं जाओगी, ये मेरा हुक्म है। नौरोज अली खान के आगे यूं भी सब चुप हो जाते थे। शांति उनकी चहीती बेटी थी। उनकी जान कैद थी उसमें। वो सर हिलाकर अपने कमरे की तरफ चली गई।
बिस्तर पर गिरी तो एक बार फिर सारा मंजर याद करके झुरझुरी लेकर रह गई। जो कुछ हुआ था वो इतना गैर मुतवक्के और अचानक हुआ था कि अकल कबूल नहीं कर पा रही थी। अगर वो गोली चला देता और मैं मर जाती, फिर इस वक्त मुझे कब्र में पहुंचाने की तैयारी हो रही होती और फिर मुनकर नकीर मेरा हिसाब किताब कर रहे होते। या अल्लाह! वो झुरझुरी लेकर आंखें मेचने लगी। मौत और अंधेरी कब्र का खौफ रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ा गया। शहीद सुफियान। शांसे ने ज़ेरे लब नाम लेकर आंखें मूंद लीं। वजीह और जोर आवर पर्सनैलिटी रखने वाले शहीद में कोई बात तो थी जो उसके जहन से चिपक गया था। पिछले 24 घंटों से शहीद ही उसकी सोचों का मरकज था। पर सोच का अंदाज बदल गया था। शांसे कल जहां उससे खार खाए बैठी थी, आज उसकी मशहूर थी। आंख खोलते ही उसने गार्ड्स और वीआईपी प्रोटोकॉल देखा था। इन दिनों वो इंग्लैंड के स्कूल से ए लेवल करके घर आई थी। उसने आज़ाद जिंदगी गुजारी थी। जब से वापस आई थी खुद को कैदी महसूस कर रही थी और पीछे चलते गार्ड्स की फौज से नाला हो जाती थी। नौरोज अली खान की बेटी और आदर्श अली खान की बहन होने का सबूत उसकी जुबान और रौनक भरा अंदाज देता था। जिद्दी, खुदसर, पैसे और पावर का गुरूर उसके हर अंदाज से छलकता था। शाइस्ता बेगम को खबर हुई तो वो उसके कमरे में चली आई। पीछे मुलाजमा थाल उठाए खड़ी थी जिसमें नजर उतारने की जमाने भर की चीजें थीं। कितनी बार कहा है शांजे, ये इंग्लैंड नहीं है, यहाँ तुम्हें गार्ड के बगैर नहीं निकलना, मगर तुम मनमानी करती हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर? शाइस्ता बेगम नजर उतारती 1000 के नोटों की गड्डी उसके सर से वार कर थाल में रखकर मुलाजमा को जाने का इशारा करके उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। मॉम, मैं ठीक हूँ, आइंदा ख्याल रखूंगी। शांजे बहस नहीं करना चाह रही थी। शाहिदा बेगम दुपट्टा सर पर जमाए उसे तफसील सुन रही थी। शहीद सुफियान के जिक्र पर शांजे की आंखें चमकने लगी। अरूश की आंखें चमकने लगीं जब सारिम की आमद हुई। वो अंदर कमरे में शकीला से बातें कर रहा था। किचन में आटा गूंथती अरूश का हर उस समात बन गया। उसकी आवाज़ सुनकर फरहत का एहसास हुआ था। वो आया भी 2 हफ्तों बाद था। दर पर्दा वो खफा भी थी। सारिम फुफोजात था। 9 उम्री में ही हिना ने हयात साहब से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था। हयात और शकीला को क्या एतराज़ हो सकता था। सारिम अब्बास उनका चहीता था, बहुत अदब करने वाला, मोहब्बत से लबरेज था। छोटी उम्र से ही अच्छे बुरे की तमीज़ थी। हयात और शकीला ने हाँ कर दी थी। उनकी बेटी सारिम अब्बास जैसे बंदे के साथ ज़िंदगी गुजारे, इन्हें और क्या चाहिए था। वो क्लास 9 में थी जब उसके सर पर दुपट्टा डालकर हिना ने उसे गले लगाकर कहा था, आज से अरूश मेरी बहू है। वो हैरान परेशान सबके चेहरे देख रही थी। सारिम अब्बास इन दिनों फर्स्ट ईयर में था। वो शकीला के साथ बैठा ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था। चेहरे की खुशी से साफ जाहिर था कि उसमें उसकी रज़ा भी शामिल है। जब तुम 3 साल की थी तभी मैंने भाई और भाभी से कहा था कि तुम्हें अपने घर ले जाऊंगी सारिम की दुल्हन बनाकर। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है ना? हिना उससे पूछ रही थी। कम सीने के बाइस उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तुम्हें सारिम पसंद है ना? हिना शरारत के मूड में थी। सबके मुस्कुराते लबों से घबरा कर वो कमरे से भाग गई। सारी रात फूफी की बातें और सारिम अब्बास की नजरें याद करके उसके लब आप ही आप मुस्कुराते रहे। कम उम्र की मोहब्बत बदलते वक्त के साथ परवान चढ़ रही थी। सारिम अब्बास बहुत मोहब्बत करने वाले सुलझे शख्स का नाम था। उसने कभी हयात साहब को बेटे की कमी का एहसास नहीं होने दिया। उसके लायक जो भी काम होता वो सर अंजाम देता था। इन दिनों वो एमफिल कर रहा था। अरूश को तालीम जारी रखने की तरगीब उसी ने दी थी। 2 दिन से वो यूनिवर्सिटी नहीं गया था, ना ही उसने अरूश को फ़ोन किया था। उसे अंदाज़ा था वो खफा होगी, तभी खुद चला आया। अरूश, सारिम को आए कितनी देर हो गई, तुमने चाय तक नहीं बनाई। शकीला किचन में आके सरजनिश करने लगी। रहने दें मुमानी, लोग अब यूनिवर्सिटी जाने लगे हैं, फुर्सत नहीं होगी उनके पास, हम गरीबों के लिए। सारिम भी किचन के दरवाजे पर खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम। गड़बड़ाकर वो जल्दी से पानी चूल्हे पर रखने लगी। वालेकुम अस्सलाम। सारिम अब्बास ने मुस्कुराती नजरों से दुश्मन जहां को देखा। एक सुकून रगों में सरायत कर गया। अरूश की मोहब्बत की जड़ें उसके अंदर बहुत गहरी थी। आप टेंशन न लें मुमानी, चाय का क्या, मैं खाना खा कर जाऊंगा। उसने प्लान बताया। जरूर, वैसे भी निहारी बनी है, तुम्हें बहुत पसंद है ना? तुम चाय पियो, हयात भी आने वाले होंगे। मैं तब तक नमाज ईशा पढ़ लूँ, देर हो जाए तो सुस्ती हो जाती है। शकीला वजू की नीयत से कमरे में बने वॉशरूम की तरफ चली गई। किचन की दीवार से टेक लगाए, हाथ सीने पर बांधे वो उसे पेड़े बनाता देख रहा था। वो खामोशी से अपने काम में लगी हुई थी। खफा हो? किस बात पर? उल्टा उससे पूछने लगी। वो भरपूर अंदाज से मुस्कुराया। नाराजगी जताने का उसका यही अंदाज होता था। 2 दिन हो गए तुम्हें यूनिवर्सिटी जाते, मैंने विश भी नहीं किया। उसने खुद वजह बताई। आपको क्या फर्क पड़ता है? वो नरूठेपन से बोली। पगली, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा तो किसे पड़ेगा? चेहरे पर झूलती लटको खींचा। पिछले दिनों अकेडमी की वजह से बहुत मसरूफियत रही। पेपर्स ले रहा था अकेडमी में। 1 हफ्ते से तबीयत ठीक नहीं थी और 2 दिन से अकेडमी भी नहीं जा रहा हूँ। अभी थोड़ी हिम्मत हुई तो चला आया तुमसे मिलने। अहवाल बताया। क्या हुआ था आपको? एक पल में नाराजगी खत्म करके फिक्रमंदी से पूछने लगी। बुखार था। बताया क्यों नहीं? तुम परेशान ना हो जाओ इसलिए नहीं बताया। पता था मुंह सुजाए बैठी होगी। उसकी फिक्रमंदी तड़प अच्छी लग रही थी। वो एक जान दो कालिब थे। छोटी सी छोटी बात एक दूसरे से करते थे। मोहब्बत के अलावा उनके बीच दोस्ती का गहरा रिश्ता था। आपकी गैर हाजिरी पर वैसे भी परेशान थी। वो चाय निकालने लगी।
अब तो बंदा हाजिर है, बोलो कैसा रहा तजर्बा? बस ठीक है, अजीब सा माहौल है, लड़कियों की ज्यादातर दोस्ती लड़कों से है, काफी हद तक दोनों मखलूक एक दूसरे को उल्लू बना रही हैं, कुछ छिछोरपन है। वो आदर्श और उस जैसे लड़के लड़कियों को देखकर हकीकतन दुखी थी। लड़कियों ने लड़कों से इसलिए दोस्ती कर रखी थी कि लड़के उसका खर्चा उठा रहे थे, खाने पीने का बिल, मोबाइल के कार्ड्स लोड करवाती थी। माहौल इंसान बनाता है, ना तुम इस नेचर की हो ना तुम्हें ये सब अच्छा लगा। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, कोई दुश्वारी हो तो मुझे बता देना, बल्कि मैं मामू से बात कर लेता हूँ। पॉइंट में जाने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ जाना और वापिस आना, तुम्हें भी परेशानी नहीं होगी और मामू मुंबानी भी तुम्हारे घर आने तक टेंशन में नहीं रहेंगे। ऐसा ही था वो एहसास करने वाला। अरूज को कुछ सुकून हुआ, वरना 2 दिन के तवील सफर ने उसे बेजार कर दिया था। यकीन करो, बेचारी चीनी घुलकर अपना नामो निशान खो चुकी है, अब तो कप दे दो। उसकी बात सुनते कप में चीनी डालकर वो चाय मिक्स कर रही थी, जिस पर वो बोल पड़ा, ओ सॉरी, ध्यान नहीं रहा। चम्मच रखकर उसकी तरफ बढ़ाया। जाहिर है, जब नजरें मुझ पर जमाए रखोगी तो ध्यान कहाँ होगा चाय की तरफ, उसने छेड़ा। इतने भी खूबसूरत नहीं हैं आप, चिढ़ गई। लेकिन तुम तो हो, सिर्फ लेते उसने भरपूर नजरों से देखते हुए कहा तो वो ब्लश होकर दोबारा रोटी की तरफ मुतवज्जा हुई। दिन भर की थकन जायल हो चुकी थी। दिन भर की थका देने वाली ड्यूटी भुगताकर वो 1:30 बजे घर में दाखिल हुआ तो सब सो रहे थे। मुलाजिम को कॉफी का कहकर वो कमरे में जाने लगा तो मम्मा अपने कमरे से निकल आईं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देर हो गई जी, आप जाग रही हैं? जब तक तुम्हारी सूरत ना देख लूं नींद नहीं आती। खाना लगवाऊं? उन्होंने उसके थके चेहरे को देखा। भूख नहीं है, बर्गर वगैरह खा लिया था, सिर्फ कॉफी की तलब है, मुनीर को कह दिया है। आप रिलैक्स होकर आराम करें। बर्गर वाली बात उसने झूठ कही थी, ना कहता तो मम्मा जबरदस्ती खाना लगवाती। इस वक्त वो सिर्फ आराम करने के मूड में था। डैड गए थे फातिमा आपी के साथ हॉस्पिटल। वो दिन भर की रूटीन में भूला नहीं था, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है कंडीशन, दवा देकर सुलाया है, बगैर जिद के बात मानी है आज। मम्मा गोश गुजार कर रही थी, शहीर उठ खड़ा हुआ। आप भी जाकर सोएं, मैं भी चेंज करके आराम करूंगा। मम्मा सर हिलाकर मुनीर को कॉफी के साथ सैंडविच बनाने का कहने किचन में चली गई। वो शहीर की रूटीन से वाकिफ थी, उसे झूठ बोलना नहीं आता था। बर्गर उसे जरा पसंद नहीं था और उसने भूख में खाया हो, सवाल ही पैदा नहीं होता था। फ्रेश होकर टी शर्ट और ट्राउजर में बिस्तर पर लेटा तो जिस्म का एक एक जोड़ दुखने लगा। मुनीर दस्तक देकर अंदर आ गया। कॉफी के साथ सैंडविच और ड्राई फ्रूट्स की प्लेट देखकर उसको मम्मा पर बेसाख्ता प्यार आया। बीबी जी ने कहा है सैंडविच लाजमी खाने हैं। मुनीर पैगाम देकर जा चुका था। उसने टीवी ऑन करके सैंडविच उठा लिया, नजरें कॉफी के मग पर जमाए वो गहरी सोच में था। अपनी सोच को अमली जामा पहनाने के लिए सारी मबास ने हयात साहब और शकीला से अरूज के लिए पिक एंड ड्रॉप की बात कर ली थी। उन्हें भला क्या एतराज़ होता, उन्होंने बाखुशी इजाज़त दे दी। सारिम भी इसी यूनिवर्सिटी से एमफिल कर रहा था, उसका भी रोज़ का आना जाना था। अच्छा था दोनों साथ जाते, उन्हें भी अरूज की तरफ से परेशानी ना होती। सुबह हस्बे वादा वो उसे पिक करने आया था। दुपट्टा सलीके से लिए बैग उठाए शकीला को अल्लाह हाफिज़ कहकर वो बाहर निकल आई। वो बाइक पर मुंतजिर था। ध्यान से चलाना बेटा, अल्लाह की अमान में। शकीला दरवाजे तक आई। सारिम के साथ बाइक पर वो पहले भी सफ़र कर चुकी थी, मगर एमरजेंसी में, कभी फूफो ने बुलाया हो या कोई काम पड़ गया हो तब। सारिम, आपने अम्मी अब्बा से परमिशन कैसे ली? सारिम अब्बास बेटों की तरह था, मगर अकेले उसके साथ वो बहुत कम कहीं गई थी। उसे रोज़ की पिक एंड ड्रॉप पर परमिशन मिलने पर हैरानी थी। मामू पहले शशोपंज में थे कि लोग क्या कहेंगे। मैंने कह दिया लोगों की परवाह करना छोड़ दें, उनका तो काम ही कहना है। और फिर जब मैं अपनी मुस्तकबिल की बीवी की जिम्मेदारी अभी से उठाना चाह रहा हूँ तो किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। तुम बिला वजह मत सोचो, इन्हें मुझ पर एतमाद है। वो इसके सवाल का मफहूम समझ गया था। मुझे तो नहीं है, उसने शौकी से कहा। क्यों बीबी, मैंने कौन सा आपको सरे राह छेड़ा है? वो भी शौकी से पूछने लगा। यूनिवर्सिटी आ चुकी थी, उसे उसके डिपार्टमेंट में छोड़कर उसने अपने डिपार्टमेंट का रुख किया। सुबह थाने का रुख किया तो उसके सेल पर अनजाने नंबर से कॉल आई। इश्तियाक नौरोज साहब का पैगाम उसे पहुंचा रहा था। सर आपसे मिलना चाहते हैं, आप शाम 5 बजे तशरीफ़ ले आइएगा, वक्त का ध्यान रखिएगा। ठीक 5 बजे। शहीद ने नागवारी से फ़ोन बंद कर दिया। कल की कार्रवाई से मुतल्लिक कॉल थी, साथी ने सवाल किया। हाँ, नौरोज साहब ने शाम 5 बजे मिलने को बुलाया है। सेलफोन मेज़ पर रखकर हैट उतारी। खुश नसीब हो जो ऐसा बंदा इनवाइट कर रहा है, इनाम इकराम की बारिश होगी तुम पर। आखिर को तुमने उनकी साहबजादी को बचाया है, वरना ये किडनैपर तो अपना काम कर देते। उसने तो सीधी नजरों से देखते कहा। यूं भी कांस्टेबल हमीद बयान रिकॉर्ड करने जाएगा, तुम अपने साथ ही ले जाना। वही बोले जा रहा था जबकि शहीद इस बुलावे का पस मंजर जानना चाह रहा था। बिल आखिर वो और उसका कांस्टेबल खुरम टाइम पर पहुंच गए। उनका इस्तकबाल इश्तियाक ने किया था। पुरतकल्लुफ़ लाउंज में बिठाकर वो अंदर पैगाम देने चला गया। थोड़ी ही देर में नौरोज़ अली खान और आदर्श आगे पीछे दाखिल हुए। उससे सलाम दुआ के बाद नौरोज़ अली खान ने उसकी तवाज़ा का हुक्म दिया। सर, हमें बयान रिकॉर्ड करना था, आप मैडम को बुलवा दें प्लीज़। कांस्टेबल के इशारा करने पर शहीद असल मुद्दे की तरफ आया। हाँ, क्यों नहीं, हम सियासी लोग हैं और हमारा काम कानून की मदद करना है। प्रोफर से बैठे नौरोज़ गोया थे। डैड, बयान रिकॉर्ड कराने के बाद शांसे का नाम आएगा और क्या वो 2 टके के किडनैपर्स के लिए अदालतों में गवाही देती फिरेगी?
आदर्श शहीर को घूरते नौरोज से हम कलाम थे। बात तो ये भी ठीक है, नौरोज अली खान की जीरक निगाहें शहीद पर गड़ी थीं। लेकिन सर, कानूनी तकाजे पूरे करने हैं। शहीद सुफियान इन खिलाड़ियों के अंदाज अच्छी तरह पहचानता था। तुम अपने तौर पर पूरे कर लो सारे तकाजे, हमने तुम्हें शुक्रिया कहने के लिए बुलाया था। नौरोज के इशारे पर इश्तियाक एक बैग ले आया और शहीद की तरफ बढ़ाया। नौरोज के इशारे पर, ये तुम्हारा इनाम है, इसके अलावा प्लॉट, बंगला, जो चाहो मांग लो, सब मिल जाएगा। बाजू सोफे पर फैलाते वो शिकार का कश ले रहे थे। शहीद के चेहरे पर नागवारी तेजी से फैली थी, जिसे उसने छुपाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। थैंक यू सर, जो कुछ मैंने किया वो मेरी ड्यूटी थी और मुझे खबर ना थी टारगेट आपकी बेटी बनने वाली है। उसकी जगह कोई और भी होता तो मैं यही करता। वैसे भी हम कई महीनों से इस ग्रुप की रैकी कर रहे थे। शहीद ने रसानी से इनकार कर दिया। ये तुम्हारी जुर्रत और बहादुरी का ही इनाम है, रख लो, हमें खुशी होगी। नौरोज अली खान की आंखें उसी पर गड़ी थीं। आपकी खुशी की खातिर रख रहा हूँ, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं इसे किसी ट्रस्ट को दे दूंगा ताकि वहाँ के बेसहारा मजबूर लोगों की दुआएं आपको मिलें। चलते हैं सर, अल्लाह हाफिज। शहीद उठ खड़ा हुआ। उन्होंने सूजी आंखें पूरी खोलकर उसे सर से पांव तक देखा। कांस्टेबल बैग ले चुका था। शहीद लाउंज से निकल आया। अकड़ देखिए इसकी। आरुष को उसका अंदाज खिल रहा था। नया नया जोश है। वो मुस्कुराए। अरुष की मुस्कुराहट खोने लगी थी। आदर्श ने जैसे उसे तंग करने की ठान ली थी, आते जाते उस पर कमेंट देना जैसे उसकी आदत बन गई थी। वो गूंगी बहरी बन जाती तो कोई तासुर ना देती, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। सारिम से जिक्र करती तो वो गैरत में जाने क्या कर गुजरता। डिपार्टमेंट से शिकायत करती तो इशू बन जाता। वो कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। एंजल, आपने सर रहमान का असाइनमेंट बना लिया है तो प्लीज दे दें, मैं कॉपी करूंगा। आदर्श बड़ी शराफत से बात कर रहा था। अरुष की खामोशी तोड़ने का अच्छा हल निकाला था। मैंने नहीं बनाया। उसे झूठ बोलना नहीं आता था, तभी जुबान लड़खड़ा गई। तो फिर ये फाइल तुम्हारे चाचा की है, जिसकी फटपटी पर बैठकर रोज आती हो। अरुष की गोद से फाइल उठाकर लहराने लगा। अपनी हद में रहें। उसे बेहद साख्ता गुस्सा आ गया। रोज से अव्वल से वो इसकी बदतमीजी को नजरअंदाज कर रही थी। उसकी खामोशी को कमजोरी जानकर वो शेर हो रहा था। क्या है मेरी हद? वो हमें उचकाकर वो उससे पूछने लगा। अवाम के वोट से सीट पर बैठकर अवाम को ही तंग करना आप लोगों का शेवा है शायद। वो ना तो एतमाद से खाली थी ना गूंगी। एक चुप सोच सुख के मुसादिक खामोश थी, मगर इसका उल्टा असर देखकर उसने अपना असल रंग दिखाना पड़ा। आदर्श लाल भूभूका हो गया। क्लास उनकी तरफ मुतवज्जा हो चुकी थी। वो उसे जता रही थी कि वो वोट की भीख मांगने वाले की औलाद है। मेरा और आपका कोई झगड़ा ना था, ना है, और ना हम दोस्त हैं। आप बराए मेहरबानी मुझसे फासला बरकरार रखें। अपनी बात मुकम्मल करके क्लास लिए बिना वो कमरे से निकल गई। गुस्से और जज्बात में वो शायद ज्यादा बोल गई थी, जिसका उसे अब एहसास हुआ था। शांजे को एहसास हुआ कि अगर शहीर को जरा देर हो जाती तो उसका ना जाने क्या होता। 2 दिन हो गए थे शांजे कमरे से बाहर नहीं निकली थी। गुज़श्ता वाक़ये से वो बहुत डर गई थी। जिस नाम पहचान पर उसे फख्र था, जिसका हवाला सुनकर लोग उसकी ताज़ीम करते थे, वही उसकी मौत का सबब भी बन रहा था। जबीन ने जितनी खुदगर्जी का मुजाहिरा किया था, उसके बाद उसने जबीन को कॉन्टैक्ट नहीं किया था, जिसका एहसास जबीन को भी था। तभी वो माफ़ी मांगने खुद चली आई थी। तुम्हारी गलती नहीं है। मौत को सामने देखकर तुम्हारी जगह मैं होती तो शायद मैं भी खुदगर्ज हो जाती। इट्स ओके। जबीन को उसके अंदाज पर खुशगवार हैरत हुई थी। तुम नाराज नहीं हो? शांजे ने नफी में सर हिलाया। मैं जिंदा हूँ और अपने आप को इंसान बनाना चाहती हूँ। शांजे बेड से टेक लगाए दोनों घुटनों पर थोड़ी टिकाए पुरसोच थी। इंसान की जिंदगी में एक ऐसा लम्हा होता है जो आपकी सोच तरजीहात को बदल देता है। कल जब मैं आंखें बंद किए मरने से पहले कलमा पढ़ने लगी तो यकीन करो मुझे कलमा तय्यबा याद नहीं आ रहा था। एक नहीं, उस वक्त मैंने कई बार कोशिश की, मगर नतीजा सिफर था। उसी लम्हे अगर मेरी मौत वाक़या हो जाती तो मैं क्या मुंह दिखाती अल्लाह को। शांजे पुरसोच अंदाज में गोया थी। उस वाक़ये के बाद बड़ी मुस्बत तब्दीली आई थी उसमें। वाकई हम एसपी शहीर का जितना शुक्रिया अदा करें कम है। जबीन उस पल को याद करके थर्रा गई। हकीकतन आदर्श अली खान थर्रा गया था। बज़ाहिर मासूम और सादा नजर आने वाली अरूश इतनी भी सादा नहीं थी जितनी नजर आती थी। उसने खामोशी की चादर ओढ़ रखी थी और आज जब बोली तो उसे उसका असल चेहरा दिखा गई। आई लाइक दिस गर्ल। अरसे बाद किसी ने आदर्श अली खान को हैरान किया था। वो मुस्कुराकर सर हिलाने लगा। ये तो पटाखा निकली। उसके दोस्त में से कोई बोला, देखने में कितनी सीधी सादी है। दूसरे ने लबकुशाई की। हैरत है आदर्श, तूने चुपचाप उसकी बकवास सुन ली, कैसे सबके सामने जलील कर गई। तीसरे ने गैरत दिलाई। सच ही कहा है, हम आवाम के वोट से ही सीट पर बैठते हैं, इसमें गलत क्या है। उसके नॉर्मल लबो लहजे पर तीनों को ही हैरत हो रही थी। तू ठीक है ना मेरे भाई? कहीं लवशब का चक्कर तो नहीं पा लिया? तीखी मिर्च से मुबशिर ने क्या सराई की। उसका कहकहा बेसाख्ता था। हाँ, सोचा जा सकता है। अच्छी तो पहली नज़र में ही लगी थी। अंदाज पुरसोच था। कहाँ तू सोने का चमचा लेकर पैदा होने वाला और कहाँ वो फटीचर से हुलिया वाली मिडिल क्लास लड़की। अजीज ने मुआवजा किया।
सियासतदानों के दिल में गरीब आवाम के लिए बहुत जगह होती है। सुना था, अब देख भी लिया। हारिस ने मजाक उड़ाया। वो पार्किंग से अपनी BMW निकाल रहा था, तभी उसकी नज़र कदरे फासले पर खड़ी अरूज पर पड़ी। बाइक वाले बंदे के साथ वो जाने के लिए बैठ रही थी। बाइक वाले ने कुछ कहा था जिस पर वो बेसाख्ता मुस्कुराई थी। उसके लब भिंच गए। दोस्तों के सामने उसने अपना भरम रख लिया था, वरना जिस तरह अरूज ने उसकी बेइज्जती की थी वो सुलग रहा था। शहीर को नौरोज का अंदाज सुलगा गया, मगर वो मजबूत हिसाब रखता था। फातिमा को लाउंज में देखकर शहीर सुफियान उनकी तरफ आ गया। कई दिनों से दोनों की मुलाकात ना हो सकी थी। सुबह वो जल्दी चला जाता और रात भी देर से वापसी हो रही थी। फातिमा हाथ में छुरी और दूसरे हाथ में सेब पकड़े पैर का मुआयना कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? शहीर उनके साथ सोफे पर बैठ गया। फातिमा ने नजर उठाकर शहीर को देखा और मुस्कुराई। वस्सलाम, बड़े हैंडसम लग रहे हो यूनिफॉर्म में। ये क्या हुआ? शहीर की नज़र उसके पैर से बहते खून पर पड़ी तो उसकी आवाज़ तेज़ हो गई। मुलाजिम को आवाज़ देकर फर्स्ट एड बॉक्स मंगवाया। कुछ नहीं हुआ, तुम परेशान ना हो। मैं तो सेब काट रही थी, छुरी पता नहीं कैसे लग गई। वो उसकी परेशानी देखकर समझा रही थी। मुलाजिम फर्स्ट एड बॉक्स ले आया। शहीर जख्म साफ करके मरहम लगा रहा था। दर्द तो नहीं हो रहा? कोई पेन किलर लाऊं? फिक्रमंदी से इस्तफसार कर रहा था। वो नरमी से मुस्कुराई और नफी में सर हिलाने लगी। मुझे तो एहसास ही ना हुआ जख्म का। मैं तो हैरानी से खून को देख रही थी। वो मासूमियत से गोया हुई। शहीर उसे मोहब्बत से देख रहा था। आपके लिए सेब काटूं? हाथ धोकर शहीर सेब और छुरी लेकर इजाज़त मांगने लगा। बातें करते कई काशियाँ उसने खुद फातिमा के मुंह में डाली। वो बातें करती खा रही थी। मम्मा भी चली आईं और शामिल गुफ्तगू हो गई। शहीर के सेल फोन पर कॉल आई तो वो उठकर साइड पर हो गया। अस्सलाम वालेकुम, अनजाना नंबर था। वालेकुम अस्सलाम, शहीर सुफियान बात कर रहे हैं? निस्वानी आवाज़ पर शहीर ने पीछे मुड़कर देखा। फातिमा अपने कमरे में जा रही थी। मम्मा ने भी किचन का रुख किया था। जी, बात कर रहा हूँ। आप कौन? उसने अपने कमरे की तरफ जाने वाले जीने की तरफ कदम बढ़ा दिए। मैं शांजे नौरोज अली खान बात कर रही हूँ। शहीर के कदम बेसाख्ता ठटक गए। वो शांजे की कॉल एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। वो शांजे की कॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। फरमाइए, कैसे फ़ोन किया? अपने कमरे में दाखिल होकर स्लाइड खोलकर बालकोनी में आ खड़ा हुआ। जी, मैं आपको पर्सनली थैंक्स कहना चाह रही थी, इसलिए कॉल की। शांजे ने झिझकते हुए बोल दिया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, शहीर ने संजीदगी से कहा। आपके लिए ना हो, मगर मेरे लिए है। आपका एहसान है मेरी ज़िंदगी पर। शांजे अपनी बोले जा रही थी। गालबन, आपका इस बात पर अकीदा नहीं है कि मौत का दिन मुतय्यन है। आपकी मौत उस दिन कातिबे तकदीर ने नहीं लिखी थी, सो आप बाहयात हैं। अगर लिखी होती तो इसमें क्या मैं क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता था और आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता था। शहीर सुफियान की गंभीर आवाज़ शांजे को समात के रास्ते दिल में दाखिल होती महसूस हो रही थी। पर्सनैलिटी की तरह उसकी बातें, आवाज़ भी सहर अंगेज़ थी। बेशक आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको अपना मोहसिन मानती रहूँगी सारी ज़िंदगी। मर्जी है आपकी। ओके। वो किसी कदर चिढ़ गया था। शांजे अली खान ने उसे कॉल की थी, कोई आम बात ना थी। वो इस सरपरी और इसके फैमिली से वाकिफ हो चुका था। बात मुकम्मल करके उसने कॉल काटना चाही, तब ही शांजे जल्दी से बोल पड़ी। एक और बात कहनी थी। कहिए, एहसान करने वाले लहजे में कहा। वो जल्द से जल्द बात खत्म करना चाह रहा था। सॉरी, पहली मुलाकात के लिए, शांजे ने झिझकते हुए कहा। मैंने पुलिस फोर्स के बारे में कुछ ज़्यादा गलत जुमले कहे थे। ये रातों रात पुलिस फोर्स से मोहब्बत और उसके लिए इज्जत कहाँ से आ गई है आपके लहजे में? शहीर ने तंजिया कहा। शांजे किसी कदर फीकी पड़ गई। एनीवे, अल्लाह हाफिज। शहीर ने कॉल काट दी। बालकनी में खड़ा आती जाती गाड़ियों पर नजरें जमाए वो शांजे की हरकत के बारे में सोच रहा था। पूरा रास्ता वो आदर्श अली खान को सोचती आई थी। वो बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। सारा वक्त उसकी परेशानी पूछता रहा। बीपी लो हो गया है। बार बार पूछने पर उसे झूठ बोलना पड़ा। ख्याल रखा करो अपना, छुई मुई सी हो और इतनी शदीद गर्मी है। आओ पहले कुछ खा पी लो, कहीं बेहोश ही ना हो जाओ। सारिम ने जूस कैफे पर बाइक रोकी। नहीं सारिम, देर हो जाएगी, अब चलें। वो जल्द से जल्द घर पहुंचना चाह रही थी। BMW में बैठा आदर्श अली खान जिस तरह उसे घूर रहा था, उससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हो रही थी। 5 मिनट लगेंगे, उतरो। और तुम किसी लोफर उठाई गिर के साथ नहीं, अपने कज़न और मंगेतर के साथ हो। छुप कर नहीं मिल रहे हम। सारिम के इसरार पर नाचार उसे उतरना पड़ा। ना करने पर भी सारिम ने सैंडविच और जूस मंगवा लिया। अरूश, तुम डर किससे रही हो यार? मैं मोमानी को बता दूंगा हम कैफे गए थे। मेरे साथ बैठना बुरा लग रहा है। वो बार बार इर्द गिर्द पर नजर दौड़ा रही थी। दुपट्टा सख्ती से लपेट रही थी, जिस पर उसे बोलना पड़ा। सारिम, आप मेरे लिए क्या हैं ये मैं जानती हूँ या आप? ये अजनबी लोग नहीं जानते। इनकी नज़रें तो ये कह रही हैं कि लड़की डेट पर आई है और मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। उसने अपनी परेशानी बताई। सारिम को भी एहसास हुआ, इससे पहले वो यूँ पब्लिक प्लेस पर नहीं बैठे थे। सॉरी, लेकिन तुम्हारी तबीयत की वजह से। सारिम उस घड़ी खुद को मुजरिम समझ रहा था। मुझे खुद से ज़्यादा आप पर भरोसा है। आपको मेरी कितनी फ़िक्र है मुझे अच्छी तरह पता है। अब सफाई ना दें। आपकी नीयत से भी वाकिफ़ हूँ, बस लोगों की नज़रें बुरी लग रही हैं। उसने मान बख्शा। ओके, जूस खत्म करो और चलो। वेटर को इशारे से बुलाया। वो मुस्कुराती नज़रों से दोनों को देखते बिल दे रहा था।
सारिम के माथे पर बल पड़ने लगे, जिस पर वेटर कुछ संजीदा हो गया। उसे अरूज की बात से इनकार ना था। उनके रिश्ते कितने पाकीज़ा हैं ये वो जानते थे, दुनिया वाले नहीं। शानज़े जान गई थी कि उसके दिल में शहीर के लिए क्या है। कॉल कर चुकी थी। शानज़े हैरानी से सेलफोन को देख रही थी। कोई और होता तो वो उसे दोबारा कॉल करके गालियां तो ज़रूर देती, मगर दूसरी तरफ शहीर सुफियान था, जिसके लिए शानज़े सोचने लगी थी। चलो शहीर सुफियान, देखती हूँ कहाँ तक भाग सकते हो। शानज़े मुस्कुराते हुए उसके तसव्वुर से हम कलाम थी। फिर तो जैसे शानज़े ने उसका पीछा ले लिया। सुबह गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के एसएमएस करती। शहीर नज़रअंदाज करता रहा कि तंग आकर वो खुद थक जाएगी, मगर वो मुस्तकिल मिजाजी से डटी हुई थी। वो सीनियर्स के साथ एक ऑपरेशन में था जब मुस्तकिल उसके सेलफोन की टोन बजने लगी। सॉरी सर। सीनियर के घूरने पर उसने सेल फोन ऑफ कर दिया। ऑपरेशन कामयाब रहा था। बत्ताखोर गिरफ्तार हो गए थे। मामूल की कार्रवाई के बाद वो घर आया। सेल ऑन किया तो अनगिनत एसएमएस आए हुए थे। उसके माथे पर बल पड़ गए। लंबी सांस लेते उसने कॉल की। शानज़े लेटकर टीवी देख रही थी। सेल बजने पर उठाकर देखा। शहीर सुफियान के चमकते नाम पर वो उठ बैठी। हेलो। उसने कॉल रिसीव की। मसला क्या है आपके साथ? क्यों मुसलसल एसएमएस करती रहती हैं? ना मैं आपकी तरह फारिग हूँ, ना दिमाग से पैदल जो आपके भेजे फनी एसएमएस पर बैठा हंसता रहूं। अब आपका कोई एसएमएस नहीं आना चाहिए। डिलीट कर दे मेरा नंबर। अपनी सुनाकर बिना उसकी सुने शहीर ने कॉल काट दी। शानज़े होंठ तोड़ के रह गई। हलाकू खान है, बिना सुने कॉल काट देता है। फीलिंग्स ही नहीं है कोई। शानज़े ने मुंह बनाते एसएमएस किया। सॉरी, अगर आप मेरी वजह से डिस्टर्ब हुए। आप अहम ड्यूटी पर होते हैं और मैं आपके काम में खलल डालती हूँ। मैं आइंदा आपको एसएमएस नहीं करूँगी। टोन पर शहीर ने सेल उठाकर देखा। ये बताने के लिए भी उसने एसएमएस ही किया था। नफी में सर हिलाते उसने लंबी सांस ली। सुबह उठने के बाद मामूल की तरह पहले सेल फोन चेक किया। आज कोई अहम एसएमएस या मिस्ड कॉल नहीं था। वो तैयार होने लगा। नाश्ते की मेज़ पर सब बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम। सबको साथ देखकर खुशगवारियत का एहसास हुआ। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ होते हो जवान? तुम्हारी तो शक्ल ही नजर नहीं आती। डैड उसे देखकर जैसे तमाना हो गए। यूनिफॉर्म में निकसिक से तैयार वो बहुत हैंडसम लग रहा था। फ़र्ज़ जानफशानी से अदा करने की सही कर रहा हूँ। आप सुनाएं कैसी चल रही है? जिम जा रहे हैं? वो कुर्सी खींचकर बैठ गया। मम्मा उसके सामने नाश्ता रखने लगी। अकेले दिल नहीं लगता। तुम आ जाओ जल्दी तो फिर चलेंगे साथ। डैड और शहीर बहुत अच्छे दोस्त थे। शिफ्ट चेंज हो तो फिर चलेंगे साथ। बाउल में कॉर्नफ्लेक्स डालकर उसने थर्मास से दूध अंडेला। बच्चों को भी जगा देती। शहीर ने मम्मा से कहा, रात देर तक मेरे पास बैठी बातें करती रही थी। मैं गई थी उठाने। उसने कहा देर से उठेगी। अच्छा है, नींद पूरी हो जाएगी। मम्मा की इतला पर वो सर हिलाने लगा। ऑफिस जाएंगी आप? मम्मा वेडिंग प्लानर थी। शादी पार्टीज ऑर्गेनाइज करती थी। हाँ, लेकिन 12 बजे तक जाऊंगी। अरे शहीर, याद आया। एक साहब है, नाम याद नहीं आ रहा। उन्होंने सुबह मैसेज देने के लिए कहा था। उनकी बेटी की शादी है। वो पर्सनली कुछ पुलिस के बंदे तैनात करवाना चाह रहे हैं शादी में। मम्मा को याद आया तो उन्होंने पैगाम दिया। खैरियत? शादी में तहय्युर का इजहार किया। उनकी बेटी में कोई लोफर इंटरेस्टेड है, जबकि लड़की बहुत पाकबाज है। अब उसकी कहीं और शादी हो रही है तो लड़के ने धमकी दी है कि शादी नहीं होने देगा, हंगामा करेगा, वगैरह वगैरह। ओके, आप उनकी शादी भी प्लान कर रही हैं? सर हिलाकर उसने सवाल किया। नहीं, बेचारे मिडिल क्लास से हैं। किसी के रेफरेंस तक मुझ तक पैगाम पहुंचाया। मामा ने क्लियर किया। ओके, हो जाएगा, आप अपसेट ना हो। वो उठ खड़ा हुआ। इस मुआशरे में लड़की के वालिदैन को कितनी मुश्किलात उठाना पड़ती हैं, ये सोचकर मम्मा अपसेट हो गई। घर आकर भी वो अपसेट थी। उसे अपनी माली हैसियत और औकात का अंदाज़ा था। आदर्श अली खान जैसे लोगों से दोस्ती या दुश्मनी के मुतालिक वो सोचना भी नहीं चाहती थी। ट्यूशन के लिए आए बच्चों को गायब दिमागी से पढ़ा रही थी। शकीला उसके पुरसोच चेहरे की तरफ बार बार देख रही थी। इस तफसार पर उसने वही बहाना दोहरा लिया था जो सारिम से किया था। आज हिना आपा आई थी। अच्छा, चली क्यों गई? मुझसे मिली भी नहीं। उसने गिला किया। जल्दी थी आपा को। किसी की इयादत को जाना था। तो तुम ही हो आना? वो भी कह रही थी बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे। शकीला बता रही थी। हिना की मोहब्बत याद करके वो मुस्कुरा दी। कल चलेंगे अम्मी फूफो की तरफ। उसने प्लान बताया। यूनिवर्सिटी की वजह से वो बिजी हो गई थी। कहीं आने जाने का टाइम नहीं मिलता था। यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी कल? इस तफसार पर उसने नफी में सर हिलाया। मूड नहीं है। खुद को लापरवाह जाहिर करके शकीला को बहलाया और बच्चों की तरफ मुतवज्जा हो गई। दरवाजे पर दस्तक हुई। शकीला सिलाई छोड़कर दरवाज़ा खोलने लगी। शकीला की तेज़ आवाज़ें उस तक आईं तो धड़कते दिल से वो भी भागी भागी दरवाजे तक गई। खाला, रेहान दोनों को देखकर एक चीख मारी। सानिया उसकी इकलौती खाला थी। इस्लामाबाद में नानी और नानों के साथ रहती थी। शादी के 2 साल बाद ही बेवा हो गई थी। रेहान उनकी इकलौती औलाद था। शकीला मोहब्बत से मिल रही थी। रेहान शकीला से चिपका हुआ था। अंदर तो आए। अरूश को ही ख्याल आया कि वो गेट पर ही खड़े हैं। बच्चों, आज छुट्टी करो, बाकी पढ़ाई कल होगी। अरूश ने बच्चों से कहा तो वो खुशी का इजहार करते चले गए। वो गेट बंद करके आई तो रेहान सेहन और पूरे घर का जायजा ले रहा था। क्या देख रहे हो छोटू? उसने मोहब्बत से रेहान के बाल बिखेरे। छोटू नहीं हूँ मैं, अगले माह पूरे 15 साल का हो जाऊंगा।
اس نے پھولے ہوئے منہ سے کہا۔ وہ اس عمر میں تھا جس میں چھوٹے کا لفظ برا لگتا ہے۔ اوہ واقعی آپ تو مجھ سے بھی بڑے ہو گئے ہو، دیکھو۔ عروش نے کھڑے ہو کر اس کے ساتھ قد ناپا، وہ اس سے بڑا تھا قد میں۔ وہ خوش ہو گیا۔ پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ عروش کچن میں آ گئی تاکہ اس کے لیے شربت بنا سکے۔ بہت اچھی، آپ دعا کیجیے گا میں اچھے نمبر سے او لیول پاس کر لوں۔ وہ معصومیت سے بول رہا تھا۔ عروش کو اس پر بہت پیار آیا۔ کیوں نہیں جانو، تم بہت اچھے نمبر سے پاس ہوگے، میں دعا کرتی ہوں اپنے سویٹ ہارٹ کے لیے۔ شربت کا گلاس اسے تھمایا اور ثانیہ کے لیے کمرے کی طرف گئی جہاں وہ شکیلا سے باتیں کر رہی تھیں۔ بہت شکریہ بیٹا، ثانیہ نے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ آپ نے اچانک آ کر سرپرائز دیا خالہ، بہت یاد آ رہی تھی آپ کی اور اس موٹو کی۔ عروش نے ثانیہ کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ صدف کی شادی اٹینڈ کرنے کا تو بہانہ ہے، اصل میں تو تم لوگوں سے ملے دن ہو گئے تھے اس لیے چلی آئی، ریان کی بھی چھٹیاں تھیں۔ ثانیہ نے بھی لگاوٹ کا اظہار کیا۔ یہ گھر بہت چھوٹا ہے، آپ لوگ ہمارے ساتھ چل کر رہیں نا؟ ریان نے شکیلا سے کہا تو وہ مسکرا دیں۔ جہاں آپ رہتے ہو وہ آپ کا گھر ہے اور یہ ہمارا گھر ہے، کوئی اپنا گھر کیسے چھوڑتا ہے بیٹا، شکیلا نے سمجھایا۔ عروش ان کے لیے اسپیشل ڈشز بنانے میں لگ گئی۔ حیات صاحب بھی ثانیہ اور ریان سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ پرتکلف کھانا کھانے کے بعد سب کافی دیر بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ شکیلا ماں باپ کو یاد کرنے لگی تو ثانیہ نے اپنے سیل فون سے ان کی بات کروا دی۔ وہ بات کر کے ملنے کے لیے بے کل ہو گئیں۔ عروش خوش تھی، اتنے دنوں کی اعصاب شکن کے بعد یہ خوشی اسے بہت بڑی لگ رہی تھی۔ وہ ناخوش تھی، شانزے نے سخت بے قلی کے عالم میں رات گزاری تھی۔ شہیر کی وارننگ کے بعد وہ سنجیدگی سے اس کے متعلق سوچ رہی تھی۔ اگلے دن بھی وہ خود کو ٹٹولتی رہی، بار بار سیل فون ہاتھ میں لیتی اور اس کے نمبر پر لا کر چھوڑ دیتی۔ نہیں، وہ برا مان جائے گا۔ اگلے 2 دن وہ اسی عمل کو دہراتی رہی۔ اسے کسی کو چین نہیں آ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا کوئی اہم چیز اس سے چھن گئی ہو۔ وہ اپنی فیلنگ سے پریشان ہو گئی تھی۔ کیا ہے، کون سا وہ کسی ایس ایم ایس پر رسپانس دیتا تھا؟ خود کو باور کراتے جانے کسی جذبے کے تحت اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ پھر تو ایک سلسلہ چل نکلا۔ اپنی ناقدری پر وہ ضدی بچے کی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر رو رہی تھی جیسے اس کا من پسند کھلونا کھو گیا ہو۔ آنسو صاف کر کے اس نے سیل فون اٹھایا اور شہیر کا نمبر ڈائل کیا۔ کال ریسیو نہیں ہوئی۔ پھر تو اس پر ایک جنون طاری ہو گیا، وہ مسلسل کال کرنے لگی۔ شہیر واش روم سے آیا تو 11 کالز دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے نام چیک کیا، شانزے۔ نظریں اسکرین پر جمائے لب دانتوں تلے دبائے وہ حیران تھا۔ 2 دن سے اس کا کوئی ایس ایم ایس نہیں آیا تھا۔ وہ پرسکون تھا کہ عقل آ گئی، لیکن اب اسی لمحے کال پھر آنے لگی۔ اس نے ریسیو کی۔ جی مسٹر شہیر سفیان، اگر کوئی کال کر رہا تو کال ریسیو کرتے ہیں، یوں منہ نہیں چھپاتے۔ شانزے کا لہجہ بہت تیز تھا، اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں، لیکن مجھے آپ کا جواب سننا ہے۔ میں 2 دن سے آپ کی بات مان کر آپ کو ڈسٹرب نہیں کر رہی ہوں، لیکن آپ سے اتنا نہ ہوا کہ آپ پلٹ کر پوچھ لیں کہ شانزے زندہ ہو یا مر گئی؟ نہیں، آپ کو تو اپنی اکڑی گردن پر گھمنڈ ہے نا، آپ کو کیا فرق پڑا ہوگا؟ بے وقوف تو میں ہوں جو 2 دن سے دنیا تیاگ بیٹھی ہوں، یوں جیسے مجھ سے میرا اثاثہ چھن گیا ہو۔ جب سے آپ ملے ہیں زندگی گزارنا مشکل ہو گئی ہے۔ کیوں آئے تھے آپ میری نظروں کے سامنے؟ اور آئے بھی تھے تو کیا ضروری تھا کہ میں آپ کی محبت میں گرفتار ہو جاتی؟ مسٹر شہیر سفیان، مجھے جنون ہو گیا ہے آپ کا۔ اگر آپ مجھے نہ ملے تو جانے میں کیا کر گزروں۔ مجھے شہیر سفیان چاہیے، ہر وقت ہر گھڑی میں آپ کو سامنے دیکھنا چاہتی ہوں۔ شانزے عالم جنون میں بولے جا رہی تھی۔ شہیر شوق بیٹھا تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ سننے کو ملے گا۔ شانزے بھی شاید سب کچھ کہہ چکی تھی۔ جنون کی داستان سنا کر اس نے فون بند کر دیا۔ شہیر یکٹک فون کو دیکھے جا رہا تھا۔ یہ سرپھری لڑکی کیا کچھ کہہ گئی تھی؟ بلا کا پرسکون شہیر سفیان کے وجود کے اندر سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ وہ سخت مضطرب تھی۔ یونیورسٹی جانا آدرش علی خان کے فضول گوئی کو برداشت کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ صبح سارم اسے پک کرنے آیا تھا تو اس نے خالہ اور ریان کی آمد کا بتا کر چھٹی کر لی۔ گزشتہ واقعے کی وجہ سے اس کا موڈ بھی نہیں تھا اور ان کی آمد نے موقع بھی فراہم کیا تھا۔ میں بھی نہیں جا رہا یونیورسٹی۔ خالہ سو رہی ہیں یا جاگ رہی ہیں؟ سارم سلام کرنے کے خیال سے پوچھنے لگا۔ سو رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، پھر میں شام کو امی کو ساتھ لے آؤں گا، تب مل لوں گا۔ وہ دروازے سے ہی پلٹ گیا۔ شام کو ہنا سارم کے ساتھ آ گئی تو گھر میں رونق ہو گئی۔ ادھر آ کے پاس بیٹھو، کتنے دنوں بعد دیکھ رہی ہوں صورت تمہاری۔ اس پر جان دیتی تھیں، اب بھی اسے ساتھ لگائے بیٹھی تھیں۔ بڑی محبت جتا رہی ہو ہونے والی بہو سے، ثانیہ نے چڑھا۔ محبت جگر کا ٹکڑا ہے یہ۔ میں اور حیات بہت چھوٹے تھے جب ماں کی شفقت سے محروم ہو گئے۔ والد نے سوتیلی ماں کو ہم پر مسلط نہ کیا، اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ میں وقت سے زیادہ سمجھدار ہو گئی تھی۔ حیات میں میری جان اٹکی رہتی تھی۔ شادی کے بعد بھی میں حیات کے لیے فکر مند رہا کرتی۔ پھر شکیلا نے میرے بھائی کی زندگی میں رنگ بھرے۔ حیات کے ناطے اس سے جڑا ہر رشتہ مجھے بے حد عزیز ہے۔ انہوں نے اسے مزید قریب کیا، سبھی اس کی محبت کے گواہ تھے۔ شکیلا اور ان کی آج تک تلق کلامی تک نہ ہوئی تھی۔
कब उतार रही हो ये चांद अपने आंगन में? सानिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। सारिम रेहान के साथ बातों में लगा हुआ था, मगर उसकी तवज्जो इनकी गुफ्तगू की तरफ थी। उसी वक्त अरूश ने नजरें उठाई थीं। सारिम उसे ही देख रहा था। उसने नजरें फेर लीं। वो मुस्कुरा दिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द, चंद माह में सारिम का एमफिल मुकम्मल हो जाएगा। खैर से लेक्चरार लग जाए, सेट हो जाए तो मैं जल्द ही ले जाऊंगी अपनी बहू को। अकेले रहकर बोर हो गई हूँ, हिना ने तफसील से कहा। हिना, सानिया, शकीला तीनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। सानिया अपनी छोटी नंद सदफ की शादी अटेंड करने आई थी। वो कि उनकी शादी सिर्फ 2 साल रही थी। निशान की हादसाती मौत के बाद ससुराली चाहते थे कि वो उनके साथ रहें, मगर बूढ़े माँ बाप का एहसास करके सानिया ने माजरत कर ली। यूं भी जिस शख्स की निस्बत से वो इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, जब वो ही ना रहा तो वो किस निस्बत से रहती। वालदैन, शकीला सबने चाहा था कि वो दूसरी शादी कर ले, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इतने सालों बाद भी ससुरालियों से राब्ते में थी, मिलना जुलना होता रहता था। अभी भी वो बतौर खास नंद की शादी अटेंड करने आई थी। सानिया हर अमल ये सोचकर करती थी कि ससुरालियों को ज़िशान की कमी महसूस ना हो। सानिया के इसरार पर अरूश भी बारात अटेंड करने गई। सानिया की सास उन्हें गले लगाए ज़िशान को याद करके रो रही थी। वो सानिया की आमद पर बहुत खुश थी। तकरीब अच्छी रही थी। सानिया के सब्र और शादी ना करने पर ससुराली आज भी उन्हें ज़िशान की बेवा होने के नाते इज्जत दे रहे थे। 2 साल रफाकत के सदके उन्होंने पूरी जवानी काट दी थी। अरूश बेखुद सी उन्हें देख रही थी। बेखुदी के आलम में वो सब कुछ शहीर को कह चुकी थी। रात भर उसने फ़ोन को तकते गुजार दी कि शायद वो कमाल करे, उसकी मोहब्बत को तस्लीम करे, भले बुरा भला कहने के लिए कॉल करे, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। कई दिनों की बेआरामी ने उसे बुखार में मुब्तला कर दिया। नौकरों की धोड़ें लग रही थी, मगर ना वो कुछ खा रही थी ना दवा ले रही थी। शाइस्ता बेगम ने नौरोज़ और आदर्श तक इसकी हालत की खबर पहुंचा दी थी। नौरोज़ उसके कमरे में मौजूद थे। इस वक्त वह जाहो जलाल और कौफर वाले रौब से अलग बाप के रूप में थे। उन्होंने बहुत मनाया, मगर शांति भी उन्हीं का फ़ोन थी। उसने इनकार कर दिया। जब तक मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी मैं कुछ नहीं खाऊंगी। फैसला अटल था। और क्या ख्वाहिश है मेरी गुड़िया की। नौरोज उसका हाथ थामे बैठे थे। जरा फासले पर आदर्श भी मौजूद था। तुम हुक्म तो करो, सब तुम्हारे कदमों तले ले आऊंगा। आदर्श ने जानना चाहा। बिलाशुबा वो बहन के लिए कुछ भी कर सकता था। मुझे शहीद सुफियान चाहिए, उसने जैसे बम फोड़ा था। शाइस्ता बेगम मुंह पर हाथ रखे हैरानी से बेटी को देख रही थी, जैसे उसकी दिमागी हालत पर शुबा हो। नौरोज अली खान जिंदगी प्लान के मुताबिक गुजारने के कायल थे। आलीशान डाइनिंग हॉल में कीमती डाइनिंग मेज पर बैठे डिनर कर रहे थे। 50 इंच की इंपॉर्टेंट एलईडी पर न्यूज चल रही थी। शाइस्ता बेगम और शानजे भी मौजूद थी, जब अचानक ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। रुकन कौमी असम्बली, नौरोज अली खान के साहबजादे ने मॉल में लड़की से बदतमीजी की। मॉल इंचार्ज के समझाने पर आदर्श अली खान ने इंचार्ज को थप्पड़ मारा। साथ ही सीसीटीवी की फुटेज में चल रही थी। डिनर के लिए अंदर आते आदर्श अली खान के कदम रुक गए। उसका खून खोल उठा। नौरोज अली खान ने सर्द नजरों से आदर्श को देखा। क्या मामला है ये? तो धाड़े। शाइस्ता बेगम और शांसे तमाशाई की तरह बैठी थी। पर्सनल मैटर है, वो लापरवाही से बोला। किसी मोची की नहीं, नौरोज अली खान की औलाद हो। तुम्हारी हरकतों से मेरे इमेज पर फर्क पड़ता है। उन्होंने सच शतूनों से घूरा। जाने क्या सोचे बैठे हो। लंदन में एडमिशन हो गया है तुम्हारा, अगले माह तुम जा रहे हो। कर लिया होगा तजुर्बा कराची की यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। मैंने मना किया था कि तुम इस तजुर्बे से बाज रहो। अकेले निकल जाते हो, गार्ड्स तक साथ नहीं ले जाते। नौरोज आज क्लास लेने के मूड में थे, जस्ट फॉर इंजॉयमेंट के लिए। उनके लाख मना करने पर भी उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। मुझे गार्ड्स की जरूरत नहीं है, मैं अपनी हिफाजत कर सकता हूँ। वो हरदरम खुद सर और सर फिरा था। ये लड़की कौन है? उन्होंने फुटेज देखते कहा। यूनी फेलो है, बहुत जहर है सियासी लोगों के लिए इसके अंदर। जताती नजरों से उन्हें देखने लगा। क्या चाहते हो? उन्होंने कब्वी से पूछा। इशारा लड़की की तरफ था। डसना, ताकि इसके वजूद में जहर फैल जाए। मकरू हंसी के साथ बोला। तुम अब कुछ नहीं करोगे, तुम्हारे इस वाक़ये पर मुझे जवाबदेह होना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी सर, नौरोज बोल रहे थे जब इश्तियाक ने मुदाखलत की। मुतवज्जा होने पर फ़ोन उन्हें पकड़ाया। नईम साहब लाइन पर हैं। इश्तियाक ने आगाह किया। आ गई कॉल तुम्हारे कारनामों की तफ्तीश के लिए। वो गुस्सा दबा रहे थे। इंजॉय डैड। वो मुस्कुराते हुए कमरे से निकल गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ, मीडिया बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है। वो अपने सीनियर मेंबर को समझा रहे थे। शहीर मम्मा को समझा रहा था। मम्मा और डैड को उसने शांति की आमद का बताया तो मम्मा एक बार फिर उसके सर हो गई। तुम एक बार फिर सोच लो, मुझे शांति पर नहीं उसके बैकग्राउंड पर एतराज़ है। किसी के मोहब्बत भरे हाथ को झटकना भी तो अच्छी बात नहीं। जब शांति खुद आपके लिए खुदकुशी करने जा रही है तो आप खुद बताएं मैं कैसे इनकार करूं। शहीर उन्हें समझा रहा था। खून का असर तो होगा, मम्मा ने जल के कहा। बिल्कुल सांस लग रही है ना डैड? हंसते हुए डैड से भी राय ली तो मम्मा भी हंस दी। चौकीदार ने शांति की आमद का बताया। गेट खोलने की हदायत करता शहीद उसका इस्तेमाल करने के लिए उठा। शांति अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके लाई थी। पीछे गार्ड की एक जीप थी। मम्मा उसके मंजर को देखकर दहल गईं। वो भी शहीद के साथ आ खड़ी हुई। क्या रुखसती में भी जदीद असलहे से लैस गार्ड्स को लेकर आएगी? मम्मा ने शहीद से फिक्रमंदी से पूछा। वो हंस पड़ा। बहू आ गई है, उसे खुद पूछ लें। शांति उन तक आ गई जब शहीद ने उसके सलाम का जवाब देते मम्मा से कहा। वाइट दिलकश जोड़े में मलबूस शांजे को शहीद ने गहरी नजरों से देखा था। रिश्ता बदला तो देखने का अंदाज भी बदल गया था। शांजे आगे बढ़कर मम्मा से मिल रही थी। क्या पूछना है? वो शहीद का जुमला सुन चुकी थी। मम्मा को भी शांजे बहुत पसंद आई थी।
खूबसूरत तीखे नैन नफरूश सवाल पर पहलू बदल कर रह गई। मम्मा पूछ रही थी, रुखसती में भी जदीद असलहे से लेस गाड़ी लेकर आओगी? शहीद ने शरारत से मम्मा को देखते कहा। शांति किसी कदर शर्मिंदा हुई। सॉरी आंटी, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। एक बार निकल गई थी अकेली तो शहीद ने जान बचाई। ये सिर्फ आज आए हैं। शादी के बाद तो शहीद मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। मुझे गार्ड्स की क्या जरूरत होगी? शांति ने इस्तेहकाक से बोलने पर जहां मम्मा को वो थोड़ी बेशरम मुंह फट लगी, वहीं शहीद शांति पर एक गहरी नजर डालकर मम्मा की शक्ल देखते मुस्कुराया। वो लोग चलते हुए लाउंज में आ गए थे। डैड को भी शांति बहुत पसंद आई थी। थोड़ी ही देर में वो मम्मा से जिस तरह घुल मिलकर बातें कर रही थी, मम्मा को अच्छी लगने लगी। फातिमा बच्चों नजर नहीं आ रही। अंदर की तरफ चलते हुए उनकी कमी महसूस हुई। गायबाना घर के हर फर से मुतारी थी। बच्चों की बेस्ट फ्रेंड की एंगेजमेंट है, वो वहाँ गई हुई हैं। होती तो तुमसे मिलकर खुश होती। शहीद उसे घर दिखा रहा था। आपका घर तो बहुत अच्छा है, वो तारीफ करती जा रही थी। तुम्हारे घर जितना तो नहीं होगा। शहीद अपने कमरे की तरफ इशारा करने लगा। मुझे आपसे जुड़ी चीजें पसंद हैं और हमारा घर तो बहुत बड़ा है। मुझे पसंद नहीं इतने बड़े घर जहाँ एक दूसरे को ढूंढते रहें। शांति ने पसंदीदगी भरी नजरों से उसके कमरे की चीजें देखी। साइड टेबल से शहीद की फोटो उठाकर देखने लगी। कमरे की एक एक चीज को वो बहुत मोहब्बत से देख रही थी। शहीद बगौर उसकी हरकत देख रहा था। बहुत खूबसूरत है आपका कमरा। यहाँ मैं आपकी बड़ी सी तस्वीर लगाऊंगी शादी के बाद, ताकि सुबह आंख खुलने के बाद सबसे पहली नजर आपकी तस्वीर पर पड़े। वो सामने वाली दीवार को देखते कह रही थी, जीता जागता बंदा तुम्हारे सामने होगा और तुम तस्वीर देखोगी। वो मुस्कुराया। दीवार से पृष्ठ काए वो उसके रूबरू थी। हथेली दीवार पर जमाए वो उसे ही देख रहा था। हर वक्त तो आप मेरे सामने नहीं होंगे ना। जब आप देर से घर लौटेंगे तो मैं यहाँ बालकनी में खड़ी आपका इंतजार करूंगी। उसकी शर्ट के बटन से खेलते वो आने वाले वक्त का नक्शा बयान कर रही थी। मैंने कहा था ना, तुम बहुत फिल्मी हो। आ जाओ इस कमरे में, फिर फिल्म देखने पर पाबंदी लगाऊंगा। शहीद हंसते हुए कह रहा था। जैसे भी हूँ, लेकिन आपसे बहुत प्यार करती हूँ। वो जज्बात का इजहार कर रही थी। उसकी नजरें शहीद की आंखों में गड़ी थी। उसकी आंखों में शहीद की मोहब्बत और चाहत का ठाटे मारता समंदर नजर आ रहा था। खामोशी जाने कितनी तवील होती। मुलाजिम की आमद पर वो लाउंज की तरफ चले गए, जहाँ पुरतकल्लुफ मेज उनका मुंतजिर था। शांति ने शहीद की पुष्प को भरपूर नजरों से देखा। शहीद की सूरत में उसे मनपसंद जीवन साथी मिल रहा था। उसे अपने नसीब पर टूट कर प्यार आया था। सारिम अब्बास अरूज से टूटकर प्यार करता था। अरूज की परेशानी उससे मख्फी ना थी। वो अरूज के लिए फिक्रमंद था। मॉल वाला शख्स कौन था? ऐसी क्या बात थी जिसे करने के लिए उसने मोहलत ली थी? वो तो हर बात बिला झिझक करती थी। टीवी चल रहा था, वो सुबह के लिए कपड़े इस्त्री कर रहा था। यूनिवर्सिटी के बाद वो अकेडमी में ग्रेजुएशन को फाइनेंस पढ़ाता था। वो वालदैन की इकलौती औलाद था। मुझे कह देते, मैं कर देती इस्त्री। हिना उसके कमरे में आई तो इस्त्री करते देख कर कहने लगी, सारा दिन तो लगी रहती हैं आप, अब मैं भी आपको तंग करूं, अच्छी बात तो नहीं होगी। वो बहुत ख्याल रखने वाला इंसान था। तुम्हें लेक्चररशिप मिले तो मैं अरूज को ब्याह लाऊं। माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची है, जन्नत बना देगी घर को। हिना अरूज के वाली सदके होने लगी। सारिम देखना, ये अपनी अरूज तो नहीं है। हिना की नजर स्क्रीन पर पड़ी तो उन्होंने बौखलाकर सारिम को आवाज दी। मॉल वाली न्यूज चल रही थी। सारिम ने इस्त्री छोड़कर स्क्रीन की तरफ देखा। वही खबर बार बार चल रही थी। उसके लब भिंच गए। या इलाही, ये क्या माजरा है? हिना दिल पकड़ कर बैठ गई। सारिम, तुम अभी मुझे लेकर चलो हयात के घर। वो चादर लेने चली गई। दस्तक पर अरूज ने दरवाजा खोला था। इतनी जल्दी उन्हें दोबारा देखकर उसे हैरानी हुई। सब सोने के लिए लेटने वाले थे। उनके मुतफक्किर चेहरे देखकर सबकी नींद उड़ गई। हिना ने टीवी खोलने को कहा। सबने न्यूज देखी। फुटेज देखकर अरूज का चेहरा लट्ठे की मानी सफेद हो गया। उसे तो खबर ही ना थी कि उसके जाने के बाद आदर्श ने क्या हरकत की है। सानिया की चीख निकल गई। सारिम की नजरें अरूज पर थी, जिसके आंसू बहने लगे थे। उसने बड़ी साफ सुथरी जिंदगी गुजारी थी। सारिम के अलावा उसने किसी मर्द से ज्यादा बातचीत नहीं की थी और अब मीडिया सरेआम उसका नाम आदरिश अली खान से जोड़ रहा था, उसकी सूरत दिखा रहा था। इससे पहले कोई उससे कुछ पूछता, उसने पूरी सच्चाई से बता दिया कि वो उसे कब से तंग कर रहा है। तुम्हें किसी को तो बताना चाहिए था ना, ये कोई आम बंदा थोड़ी है। उफ, अब क्या करेंगे? सानिया ये मुतफक्किर बोल रही थी, बाकी सब में कुछ बोलने की हिम्मत ना थी। तुम अब से यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी, हयात साहब ने फैसला सुनाया। लेकिन हयात भाई, ये हल तो नहीं है। सानिया ने मुज़ाहमत की। मुझे अपनी बच्ची पर एतबार है। मैं नहीं चाहता कल को फिर कोई तमाशा बनाए या खबीस आदमी। ऐसे लोगों से उलझना कीचड़ में पत्थर मारने के मुतरादिफ है। हयात साहब को सोच अंदाज में गोया हुए थे। शकीला को चुप सी लग गई थी। सानिया और हिना उन्हें समझाने के लिए अंदर ले गई। हयात साहब पहले ही जा चुके थे। माहौल में अफसरदगी छाई थी। इतना कुछ होता रहा और तुमने मुझे बताया तक नहीं। सारिम ने गिला किया। सहन में वो दोनों रह गए थे। वो खामोशी से आंसू बहा रही थी। मैं उस बेगैरत को, सारिम प्लीज, आप कुछ नहीं करेंगे, आपको मेरी कसम। अरूश हाथ जोड़े इल्तिजा कर रही थी। सारिम संजीदा चेहरा लिए उसे देख रहा था। अरूश उसके लिए क्या थी ये वो खुद भी नहीं जानती थी। शहीद शांति के लिए क्या था ये वो बहुत अच्छी तरह जान गया था। शांति की दीवानगी को उसने बहुत करीब से देखा था। 15 दिन के बाद मम्मा और डैड को हज की अदायगी के लिए रवाना होना था। इन दोनों की ख्वाहिश थी कि वापसी के बाद कोई डेट रख लें, मगर अगले 3 माह नौरोज अली खान गैर मुल्की दौरों में बिजी थे। बिल आखिर तय पाया कि सादगी से निकाह और रुखसती हो जाएगी। मम्मा डैड के वापस आने पर नौरोज अली खान ग्रैंड रिसेप्शन देंगे। इतनी जल्दी? आदर्श के शोर करने पर नौरोज अड़े रहे कि ये शांति ने तय किया था, क्योंकि मम्मा डैड के आने के बाद शहीद को मजीद ट्रेनिंग के लिए जाना था।
ایک ہفتے میں تیاری کرتے وقت کا پتہ بھی نہ چلا۔ نوروز علی خان کی اکلوتی بیٹی کی شادی پر میڈیا نے کوریج کی تھی۔ سر، آپ سیاست سے تعلق رکھتے ہیں، اکلوتی بیٹی کی رخصتی اتنی سادگی سے کر رہے ہیں؟ مایوں مہندی کوئی اسراف نہیں؟ رپورٹر نے سوال کیا تھا۔ ہم عوام کے چنے ہوئے نمائندے ہیں، انہی میں سے ہیں۔ میں اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی میں کوئی فضول خرچی نہیں کر رہا۔ میں عوام تک یہ پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ میں 1 ڈش کی بجائے ہزاروں ڈش رکھ سکتا ہوں، کروڑوں خرچ کر سکتا ہوں، مگر میرے دل میں ان بیٹیوں کا درد ہے جو جہیز جیسی لعنت نہ ہونے پر گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں۔ ان کے والدین کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ بیٹی کی شادی کے اخراجات برداشت کر سکیں۔ میں اپنے عمل سے ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے دل میں ان کے لیے کتنا درد ہے۔ نوروز کے اس طرح بولنے سے لوگ اشش کر رہے تھے۔ ڈیڈ، اس اسپیچ سے آئندہ کئی سالوں کے لیے آپ نے اپنی کرسی پکی کر لی ہے۔ آدریش نے سراہا۔ وہ مسکرائے۔ شکر ہے تم نے سمجھداری کی بات کی، ورنہ سادگی کے تم ہی مخالف تھے۔ اب آپ کی پالیسی سمجھنے لگا ہوں۔ شہیر کا انتخاب بھی آپ نے کسی پلاننگ کے لیے کیا ہوگا۔ صحیح اندازہ لگایا، عقل مند ہو رہے ہو۔ وہ ہنسے اور مہمانوں کی طرف مڑ گئے۔ نوروز علی خان نے دنیا دکھاوے کو بھلے سادگی سے شادی کی تھی، مگر بیٹی کے نام ہزاروں کنال کا بنگلہ، فارم ہاؤس اور کروڑوں کی جیولری کی تھی۔ انہیں اپنے نام کی لاج رکھنا تھی۔ انہیں اپنی لاج رکھنا تھی اور اس پر سب کو آنکھ بند کر کے یقین تھا۔ بند کمرے میں گفت و شنید کا معاملہ طے پایا تو دروازہ کھلا۔ ہینا نے اشارے سے انہیں اندر آنے کو کہا۔ عروج کو بے جان ٹانگوں سے کھڑا ہونے میں دشواری ہوئی تو ریان نے آگے بڑھ کر اسے اٹھنے میں مدد دی۔ وہ اس کے ناتواں بازوؤں کے حصار میں کھڑی ممنونیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ریان بہت سنجیدہ لگ رہا تھا۔ بیٹا، ہمیں تم پر رتی برابر شک نہیں ہے، لیکن جو کچھ ہوا برا ہوا۔ اس معاملے کے دبنے تک ہم سب نے طے کیا ہے کہ تم ثانیہ اور ریان کے ساتھ کچھ مہینوں کے لیے اسلام آباد شفٹ ہو جاؤ۔ وقت کی گرد اس قصے پر پڑ جائے تو ہم تمہیں واپس بلا لیں گے اور جلد ہی سارم کے ساتھ رخصت کر دیں گے۔ حیا صاحب نے انہیں گوش گزار کیا۔ ماموں، یوں ڈر کر عروج کو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ سارم کو اعتراض ہوا۔ بیٹا، تم جوان ہو، تمہارا خون گرم ہے، ٹھنڈے دل سے سوچو۔ جوش کی بجائے ہوش کے ناخن لوگے تو ہمارا فیصلہ درست لگے گا۔ حیا صاحب کے سمجھانے پر سارم چپ ہو گیا۔ صبح جب پڑوسن شکیلا سے کل کی نیوز کے متعلق استفسار کرنے چلی آئیں تو سارم کو معاملے کی حساسیت کا اندازہ ہوا۔ شکیلا نے نفی میں جواب دیا تھا۔ ہاں، میں بھی خرم کے ابا کو یہی کہہ رہی تھی کہ لڑکی عروج سے مشابہت رکھتی ہے۔ عروج تو بہت سیدھی سادی بچی ہے، اللہ بچائے آج کل کی لڑکیوں کے منہ میں گز بھر کی زبان ہے۔ کیا ضرورت ہے بغیرتوں کے منہ لگنے کی؟ کوئی عام بندہ تھوڑی ہے جو اپنا تماشا بنانے پر چپ بیٹھ جائے گا۔ مجھے تو اس بچے کی فکر ہو رہی ہے۔ پڑوسن تقریر کر کے چلی گئی تھی۔ شکیلا رونے لگی۔ عروج مجرم بنی کھڑی تھی۔ سب خاموش تھے، کسی نے کچھ نہیں کہا تھا۔ وقت اور حالات کی نزاکت سے ہر کوئی واقف تھا۔ عروج کی آنکھ سے ایک بوند آنسو کا گرا۔ تعلیم مکمل نہ کر پانے کا دکھ گہرا تھا۔ سارم تینوں کے لیے ٹکٹ لے آیا تھا۔ ٹکٹ رات کی تھی۔ سب نے سوچ سمجھ کر احتیاط برتی تھی۔ اپنے تئیں وہ اس سفر کو خفیہ رکھنا چاہ رہے تھے، گو کہ آدریش علی خان نے کوئی دھمکی نہیں دی تھی، مگر وہ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ ایئرپورٹ جانے کے لیے سارم ٹیکسی لے آیا۔ وہ خود انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے جانا چاہتا تھا، مگر سب نے منع کر دیا تھا۔ سب لوگ احتیاط برت رہے تھے اس سفر کو روٹین کا رکھنے میں۔ تم خود کو اکیلا نہ سمجھنا۔ میں تو چاہتا تھا تم یہیں رہو اور ہم حالات کا مقابلہ کریں، مگر بڑوں کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتے۔ ہینا عروج کا سامان پیک کر رہی تھی۔ سارم عروج کی دل گرفتی پر ڈھارس دے رہا تھا۔ عروج کچھ نہ کرنے پر بھی گلٹی محسوس کر رہی تھی۔ حیات اور شکیلا کل سے جس طرح ہر کھٹکے پر چونک رہے تھے، عروج کو یہ دیکھ کر عروج بے حد دکھی تھی۔ ٹینشن نہ لو، انشاءاللہ ہم سب جلد اسلام آباد آئیں گے اور اللہ نے چاہا تو تمہارا اور سارم کا نکاح بھی ہو جائے گا۔ ہینا وقت رخصت گلے لگاتے سمجھا رہی تھی۔ سب سے مل کر وہ ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ ٹیکسی ایئرپورٹ کا سفر کرنے لگی۔ زندگی نئے ڈگر پر سفر کرنے لگی تھی۔ دلہن بنی شانزیں بے حد خوش تھی، جو کچھ اس نے چاہا وہ پا لیا تھا۔ بیٹا، کسی شے کی ضرورت تو نہیں؟ حسین ترین شانزیں کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے ماما پوچھ رہی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہی لایا۔ تم ایزی ہو کے بیٹھ جاؤ، تھک گئی ہوگی۔ ہدایت دے کر وہ چلی گئی تھی۔ شہیر اور آنے والے وقت کے احساس سے وہ خود میں سمٹی جا رہی تھی۔ رشتہ طے ہونے کے بعد شہیر کا شوق شرارتی روپ اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ اسے مزید اسیر کر گیا تھا۔ وہ کمرے میں آ چکا تھا۔ دلہن بنی شانزیں اس کی منتظر تھی۔ اس کے مقابل بیٹھ کر وہ بغور اس کا ہوش ربا حسن دیکھ رہا تھا۔ واقعی سب درست کہہ رہے تھے، تم تو بہت حسین لگ رہی ہو۔ شانزیں شرمیلی مسکان سے جائے اسے دیکھ رہی تھی۔ وائٹ شیروانی میں وہ بھی بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ کم تو آپ بھی نہیں لگ رہے۔ یہ تو آپ کا حسن کرم ہے جو میں آپ کے مقابل بیٹھا ہوں، ورنہ میں نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ شانزیں نوروز علی میری ہمسفر بنے گی۔ شانزیں کی مسرت اس کے انگ انگ سے ہویدہ تھی۔ اس کے لیے تو آپ کو مجھے کریڈٹ دینا چاہیے کہ میں نے ناممکن کو ممکن بنایا۔ وہ داد کی منتظر تھی۔ بے شک، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، داد بھی دوں گا۔ فی الحال تو یہ رہی تمہاری رونمائی۔ شہیر کا جملہ مکمل ہونے کے بعد تھپڑ کی گونج سے کمرے کے در و دیوار کانپ اٹھے۔ شانزیں بھاری بھرکم لہنگے سوٹ میں بائیں طرف لڑک گئی تھی۔ سنسناتے دماغ کے ساتھ گال پر ہاتھ رکھے وہ سیدھی ہوئی۔ زمانے بھر کی حیرت اس کی آنکھوں میں آ گئی تھی۔ کیوں جیسے الفاظ چکر کھانے لگے۔ پسند آئی رونمائی؟ احتجاجی انداز لیے پوچھ رہا تھا شہیر۔ اس کے لبوں سے مشکل نکلا تھا۔ آنسو آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ وہ جسے کبھی پھولوں کی چھڑی سے کسی نے نہیں مارا تھا، زندگی کے سبب سے اہم لمحے میں وہ اسے بھرپور تھپڑ رونمائی کی صورت میں دے گیا تھا۔ تم داد کی منتظر تھی نا؟ تمہیں ساری زندگی اس طرح داد دوں گا۔
तुम ने क्या समझ कर मेरी तरफ पेश कदमी की थी? मैं तुम्हारे बाप की जागीर का हिस्सा था जो तुमने अपने बाप से मेरी फरमाइश की और उन्होंने बखुशी मुझे तुम्हें दान कर दिया। तुम्हें मैं सिखाऊंगा कि किसी को जबरदस्ती यरगुमाल बनाकर अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं की जा सकती। मैं एक एक लम्हे का तुमसे खिराज लूंगा। आज के बाद तुमने मेरी मर्जी के बगैर सांस भी लेने की कोशिश की तो मैं एक लम्हे की देरी किए बगैर तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। तुम्हारे बाप भाई जैसे शैतान सिर्फ सियासी बंदे को मैं जूते की नोक पर रखता हूँ। अगर मेरे लफ्ज़ों का यकीन ना हो तो अभी उन्हें कॉल करके इस रोनामाई के मुतालिक बता दो। रोज़े अव्वल वाला शहीद सुफियान उसके मद्दे मुकाबिल था। उसके लफ्ज़ों और आंखों से निकलती नफरत की शौं से शांसें झुलसी जा रही थी। फिर आपका वो प्यार भरा रूप, वो क्या था? अगर आपकी अना पर चोट लगी थी तो आप इनकार कर देते। उस पर हैरतों के पहाड़ टूट गए थे। वो सब धोखा था और इनकार वहाँ किया जाता है जहाँ आपकी मर्जी पूछी जाए। आप और आपके वालिद मोहतरम ने मुझे अपना ज़रख़िरिज़ समझकर शादी का पैगाम भेजा था। सो हो गई शादी। इंजॉय करो इस लाइफ को जिसे तुमने खुद अपने लिए चुना है। और अब हटो बेड से, मुझे सोना है। तुम नीचे सो सकती हो। हुक्म सादिर करके वो वॉशरूम में घुस गया। इस पजीराई पर शांसें फूट फूट कर रो रही थी। अरूश चादर में मुंह छुपाए फूट कर रो रही थी। अपना घर इस तरह रात के अंधेरे में छोड़ना पड़ेगा उसने कभी सोचा नहीं था। अभी वो घर से जरा ही दूर आए थे कि एक हाई रूफ स्पीड से आई और टैक्सी के आगे आकर रुक गई। वर्क रफ्तारी से चंद असला बरदार लोगों असला बरदार लोग काले लिबासों में निकले और टैक्सी का दरवाज़ा खोलकर अरूश को घसीटने लगे। सब कुछ इतनी वर्क रफ्तारी से हुआ था कि चंद मिनट सबको समझने में लगे। अरूश और सानिया की चीखों से माहौल खौफनाक बन गया था। रेहान ड्राइवर के साथ आगे बैठा था। उसने बाहर निकलने के लिए कोशिश की तो एक मुसलह शख्स ने उसे वापस धकेल दिया। अरूश और सानिया की मुज़ाहमत के बावजूद वो लोग अरूश को हाई रूफ तक ले जाने में कामयाब हो गए थे। रेहान भागकर हाई रूफ तक पहुंचा था। छोड़ दो मेरी आपी को, मुसलह शख्स ने फायर कर दिया। गोली रेहान के पैर पर लगी। वो गिर पड़ा। टैक्सी ड्राइवर मौके से फरार हो चुका था। रेहान, सानिया चलाती हुई भी सड़क पर पड़े रेहान की तरफ भागी। हाई रूफ अंधेरे में गुम हो गई थी। रेहान, तुम ठीक हो? हानिया हवास भागता उसे छू कर देख रही थी। पैर से निकलता खून उनके औसान खता कर गया था। मैं ठीक हूँ अरूश आपी। वो अपना जख्म भुलाए अपनी बेबसी पर रोने लगा। सानिया ने जीन्स की जेब से सेलफोन निकालकर सारिम को कॉल की। सारिम, जल्दी आओ, हम सामने चौक पर हैं। रेहान को गोली लगी है, उसके पैर से बहुत खून बह रहा है। सानिया की रोती आवाज़ पर सारिम चीख उठा। गोली लगी है रेहान को? मैं बस आ रहा हूँ। सारिम गेट की तरफ भागा। बाकी सब भी उसकी गुफ्तगू सुनकर बाहर भागे। सारिम बाइक स्टार्ट करके ये जा वो जा। हया साहब ने साथ वाले नज़ीर साहब को रिक्शा अंदर लाते देखा तो उन्हें साथ चलने का कहा। हिना और शकीला को सवार होने का इशारा किया। बीच सड़क पर सानिया रेहान को संभालते हुए यारों मददगार बैठी थी। रेहान के घुटनों से नीचे गोली लगी थी। सारिम, जल्दी करो। सानिया को उसकी सूरत देखकर हौसला हुआ। सारिम ने टैक्सी में रेहान को उठाकर डाला। बाकी सबका रुख भी हॉस्पिटल की जानिब था। आपा, अरूश कहाँ है? शकीला ने सानिया से सवाल किया। सबको अरूश की गैर मौजूदगी का एहसास हुआ। पता नहीं कहाँ से आए थे वो लोग। अरूश को साथ ले गए। रेहान ने मुज़ाहमत की तो शकीला दिल पकड़कर गिरने लगी। हिना ने उन्हें संभाला। आंटी, कौन लोग थे? पीछा क्यों कर रहे थे? सारिम गुस्से से पागल हो गया। पता नहीं बेटा, मैं चुकन्नी बैठी थी, जाने अचानक कहाँ से आ गए। किसी के गार्ड्स लग रहे थे, सब के सब एक जैसे कपड़े में थे। सानिया तफसील बता रही थी। यकीनन उस कुत्ते की हरकत होगी। सारी मुठियां भेजता फुनकारता बाहर की तरफ लपका। हयात, पकड़ो इसे। हिना की चीख से पहले हयात साहब उसे पकड़ चुके थे। कहाँ जा रहे हो? सानिया ने सारिम को मजबूती से पकड़ लिया। शकीला मुंह पर हाथ रखे अपनी चीखों का गला घोंट रही थी। हिना उनके साथ लगी आंसू बहा रही थी। आदर्श की तरफ। उसने प्लान बताया। कोई सबूत है तुम्हारे पास? तो अपने घर बैठा होगा इतना कुछ करके। तुम मेरी इकलौती औलाद हो, मैं तुम्हें भेंट नहीं चढ़ा सकती। हिना के बैन पर सबके आंसुओं में रवानी आ गई थी। फिजा में सिसकियां गूंज रही थी। शांजे की सिसकियां कमरे में गूंज रही थी। फिर ना जाने वो कब सो गई। शहीर की आंख खुली तो शांजे उसे कारपेट पर सुकड़ी सिमटी सोई नजर आई। उस पर एक निगाह डालकर वो वॉशरूम में चला गया। दरवाजा धमाके से बंद हुआ था। शांजे की आंख खुल गई। गालबन ऐसा जानबूझकर करके गया था ताकि वो जाग जाए। शांजे को बाजू और कमर में नीचे सोने के बायस दर्द महसूस हो रहा था। इम्पोर्टेड बेड पर सोने वाली को जिंदगी में पहली बार नीचे सोने का तजर्बा हुआ था। वो उठ बैठी। तौलिए से मुंह साफ करता शहीर कमरे में आया और कदावर आईने के आगे खड़ा हो गया। वो उसकी चौड़ी पुश्त को देखती रही। 2 मिनट में तैयार हो जाओ। मम्मा डैड नाश्ते पर इंतजार कर रहे होंगे। आज उनकी रवानगी है। सारा वक्त तुमने उनके साथ गुजारना है और उनके सामने खुद को बहुत खुश जाहिर करना है। वो हदायत दे रहा था। शांजे खामोशी से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। फ्रेश होकर वापस आई तो वो चेंज करके बाल बना रहा था। सामने ड्रेसिंग रूम है। सामने मौजूद पर्दे की तरफ इशारा करके कहा। शांजे ने आगे बढ़कर पर्दा हटाया और अंदर दाखिल हो गई। खासा बड़ा कमरा था। दीवार के चारों तरफ दीवार गिर अलमारियां बनी हुई थी। सामने ब्लैक कलर का सूट हैंग किया हुआ था। साथ ही मैचिंग की चीजें रखी हुई थी। गालबन उसे हैंग किया गया सूट पहनना था, तभी सूट बाहर था। वो चेंज करके आई तो शहीर कफलिंग्स लगा रहा था। शांजे खामोशी से मिरर के आगे बैठ गई। दाएं गाल पर उंगलियों के निशान वाजे थे। गाल पर हाथ फेरते उसने लिक्विड फाउंडेशन की तलाश में नजर दौड़ाई। वो मेकअप बहुत कम करती थी, मगर इस निशान के लिए उसने लाइट सा मेकअप किया। ब्लशर अच्छी तरह अप्लाई किया तो निशान कम हो गए। मुतमईन होकर उसने लिप ग्लोज लगाया, ज्वेलरी पहनी, बालों को अच्छी तरह ब्रश करके खड़ी हो गई।
दुपट्टा सर पर लूं। वो बेड पर बैठा इसकी सारी कारगुजारी देख रहा था जब वो उसके सामने सजी संवरी खड़ी पूछ रही थी, तुम जैसी हो वैसी रहो, ज्यादा सती सावित्री बनने का नाटक न करो। जूते पहनते वो उठ खड़ा हुआ। शांति ने मैचिंग सैंडल ली और उसकी तकलीद करती कमरे से निकली। शहीद ने उसका हाथ थाम लिया। शांति ने इस हरकत पर गर्दन मोड़कर देखा। वो बेतासुर चेहरे के साथ सीढ़ियां तय कर रहा था। मम्मा डैड नाश्ते की मेज पर बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम। शहीर की तकलीद में उसने भी सलाम किया। बस सलाम, खुश रहो दोनों, अल्लाह नजरे बस से बचाए। मम्मा ने मुस्कुराते हुए शहीर के हाथ में उसके हाथ को देखा। शांति को शहीर की हरकत समझ आ गई। वो मम्मा के गले लगे खड़ी थी। शहीर ने हाथ छोड़ दिया था। तुम लोगों का नाश्ता कमरे में भिजवा रही थी, तुम लोग क्यों चले आए? मम्मा शांति को कुर्सी पर बिठाती कहने लगी। शांति की ख्वाहिश थी साथ नाश्ता करने की, क्योंकि रात तो आप लोगों की फ्लाइट है, ये ज्यादा से ज्यादा वक्त आप लोगों के साथ गुजारना चाह रही है। शहीर हशाश बशाश चेहरे के साथ शांति को नजरों की गिरफ्त में लिए कह रहा था। मम्मा और डैड निहाल हो गए। क्या लोगी बेटा? डैड भी नाश्ते का पूछने लगे। आप लोग परेशान ना हो, मैं खुद ले लूंगी। शांति ने कॉर्नफ्लेक्स बाउल में निकालते उन्हें मेहमान नवाजी से रोका। खुशगवार माहौल में नाश्ता हुआ। नाश्ते से फारिग होकर मम्मा बची कुची पैकिंग करने लगी तो शांति उनका हाथ बटाने लगी। डैड मम्मा के दोस्त अहबाब मिलने के लिए आने लगे तो शांति अच्छी मेजबान की तरह खुश इखलाकी से मिलकर उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करवाने लगी। चुपचाप इतनी अच्छी बहू ले आई और हमें बुलाया तक नहीं। मम्मा की सहेली उनसे गिला कर रही थी। बस बहुत सादगी से हुआ सब कुछ। लौट आने के बाद इंशाल्लाह बहुत ग्रैंड रिसेप्शन दूंगी। मम्मा ने शांति को अपने साथ बैठने का इशारा किया। वो मुलाजिम से चाय सर्व करवा रही थी। मुलाजिम हैं बेटा, तुम क्यों हलकान हो रही हो, थक जाओगी। मम्मा ने शांति को साथ लगा लिया। फातिमा बज्जो नजर नहीं आ रही। मेहमान जा चुके थे जब शांति को ध्यान आया। 2 दिन से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। रात भी बहुत तेज बुखार था। यूं भी वो बहुत तन्हाई पसंद है, बहुत कम घुलती मिलती है। मम्मा ने तफसील गोश गुजार की। मेरी गैर मौजूदगी में तुम उसका ध्यान रखना, खाने पीने के मामले में बहुत लापरवाह है। मम्मा शांति को जिम्मेदारी सौंप रही थी। आप बिल्कुल फिक्र ना करें घर की, अब मैं आ गई हूँ ना, बच्चों को भी देख लूंगी। शांति ने जिम्मेदार बहू की तरह कहा। मम्मा ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया। बहुत अच्छी बच्ची है मेरी, वरना यकीन करो मैं हकीकतन बहुत डर गई थी जब शहीद ने कहा था वो तुमसे शादी करना चाहता है। तुम इतने बड़े बाप की बेटी, तुम्हारा इमेज कुछ पॉजिटिव नहीं था, लेकिन अब माशाल्लाह तुम बहुत अच्छी हो। मम्मा ने सच्चाई से सारी बात कही तो शांति भी मुस्कुरा दी। आपका डर बजा था, मैं हकीकतन वैसी ही थी जैसा आप सोच रही थी। लेकिन ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि शहीर को देखने के बाद मुझ में तब्दीली आ गई है। मैं खुद को आप लोगों के सांचे में ढालना चाहती हूँ। कभी कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे बेटी की तरह समझाइएगा। शांति मम्मा का हाथ हमें बहुत मोहब्बत से ये सब कह रही थी। उसका जाहिर और बातिन एक था। बड़ी सच्चाई से उसने खुद एक्सक्यूज किया था। मम्मा निहाल हो गई। अल्लाह तुम्हें हर गमो आफत से बचाए रखे, तुम चांद की तरह हमारे घर में सदा चमको। उसके मेहंदी से सजे हाथों को चूमते मम्मा की आंख नम हो गई। मैं सुबह से नोट कर रहा हूँ, सास बहू जफ्फी पे जफ्फी डाल रही है, बात में शहीर भी चला आया था। शांति सीधी हो गई। तुम्हें क्यों जलन होने लगी? मेरी बहू का बहुत ख्याल रखना, अगर इसे जरा भी तकलीफ हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मम्मा की वार्निंग पर शहीद ने गहरी नजरों से शांति को देखा कि शायद उसने कुछ बताया हो। वो उसकी नजरों से खाइफ होकर अपने हाथों को देखने लगी। बहू को आए 24 घंटे नहीं हुए और आपने पार्टी बदल ली। शहीद मुस्कुराते हुए उनके सामने बैठ गया। मुलाजिम लंच के लिए बुलाने आया था। शहीद ने आज छुट्टी की थी। चारों ने साथ लंच किया। मम्मा फातिमा के कमरे में खुद खाना लेकर गई थी, मगर वो सो रही थी। शांति ने बाद में खिला देने की जिम्मेदारी ले ली थी, जिस पर मम्मा मुतमईन हो गई थी। मैं बच्चों के लिए चिकन दलिया बना देती हूँ, उठेंगी तो खिला दूंगी, आप आराम करें, आप सफर पर जाने से पहले थक जाएंगी। शांति ने उन्हें आराम को मशवरा देते हुए कहा तो वो दुआ देती आराम करने चली गई। बीबी जी, साहब के कुछ दोस्त आए हैं, चाय के साथ क्या दूं? कुक बर्तन समेटे पूछ रहा था। तुम चाय तैयार करो, मैं आती हूँ किचन में, दलिया भी बनाऊंगी। मजीद मेहमान आएंगे तो बेकरी से चीजें मंगवाऊंगी। बाहर के काम कौन करता है? वो उठते हुए मुलाजिम से पूछ रही थी। शहीर को गौर उसका अंदाज मुलाहिजा कर रहा था। बगैर किसी शोर हंगामे के वो यूं सुबह से घर के कामों में लगी हुई थी जैसे कोई सलीकामंद मिडिल क्लास लड़की सालों से ससुराल की खिदमत करती आ रही हो। शहीर दानिस्ता तौर पर सुबह से मुंतजिर था कि वो अपने साथ होने वाली ज्यादती पर कब उससे बात बरस करती है, शोर करके अपनी मजलूमियत का ढिंढोरा पीटती है। मगर ऐसा कुछ ना हुआ। वो भी उठकर अपने कमरे में आ गया। कमरे की सफाई हो जाने के बाद भी सांसों में उतर जाने वाली महक दरो दीवार से आ रही थी, ऐसी महक जैसी दुल्हन के वजूद से आती है। ड्रेसिंग पर उसकी रात की ज्वेलरी, बेड के नीचे पड़े स्लीपर्स एहसास दिला रहे थे कि इस कमरे में किसी और का राज होने लगा है। नफी में सर झटक कर उसने मुंह पर तकिया रख लिया। अरूज के मुंह पर कपड़ा ठोंस दिया गया था, जिससे उसकी आवाज गले में घुटकर रह गई थी। कलाई सख्ती से बंधी हुई थी। शहर से दूर बेयाबान जगह में गाड़ी रुकी थी। उसे कमरे में लाकर उसकी कलाई खोले बगैर कपड़ा मुंह से निकालकर उस पर एहसान किया गया था। उसके साथ क्या हादसा हो चुका था वो जानकर कांप रही थी। काले लिबास वाले खौफनाक रक्त चेहरे वाले लाल अंगारा आंखों से देखते उसकी जान निकाल गए थे। उसे कुछ समझ आ रहा था।
आदर्श अली खान अंदर दाखिल हुआ। अरूज की रूह फना होने लगी। उसे लाने वाले कमरे से जा चुके थे, अब सिर्फ वो दोनों थे। तुम्हें क्या लगा था मुझे जलील करके तुम आराम से मुंह छुपाकर बैठ जाओगी और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? आदर्श की फुनकार उसे शाम की सरसराहट जैसी लगी। उसने हाथ जोड़ दिए। मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगती हूँ, मुझे जाने दो। एक जन्नाटेदार थप्पड़ अरूज के मुंह पर पड़ा था। वो गिर गई। उसे धूल चटाने के लिए ही तो आदर्श ने खेल खेला था। उसने कोई रियायत नहीं बरती थी। बेदम सी अरूज को मुहाफिजों के रहम करम पर छोड़कर वो फार्म हाउस से चला गया। कई एक शैतान सिर्फ मुहाफिजों ने भी मालिक की हिदायत पर जिल्लत उसके मुकद्दर पर रकम कर दी थी। अमीर अपना मुकद्दर खुद रकम करते हैं, वो तो गरीब क्लाश होते हैं जो अपने मुकद्दर से हमेशा शाकी रहते हैं, कमी का रोना रोते रहते हैं। शानजे का शुमार मुकद्दर रकम करने वालों में से था। उसने शहीर के ना चाहने के बावजूद उससे रिश्ता जोड़ लिया था और अब उस रिश्ते के मुकद्दर में क्या था ये वक्त ने तय करना था। शहीर के साथ वो भी मम्मा डैड को सी ऑफ करने एयरपोर्ट आई थी। हमारे लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा, मम्मा से लगी कह रही थी। जरूर, मैं दुआ करूंगी, अल्लाह मेरे बच्चों को सदा खुश रखे। एक दूसरे के साथ मम्मा के अधूरे जुमले को शांति ने बहुत जल्द से मुकम्मल किया था। शहीर ने एक नज़र उसे देखा, वो उसे ही देख रही थी। जाने कैसा जुनून था शांजे की आंखों में। शहीर ने नजरें फेर ली। वापसी में गाड़ी में खामोशी थी। सुबह से दोनों को तन्हाई नहीं मिली थी। दानिस्ता ना दानिस्ता भी शहीर ने बात करने की कोशिश नहीं की थी, न शांजे ने उसे मौका दिया था। हकीकतन उसे शांजे की खामोशी पर बहुत हैरत हो रही थी। शाम में शाइस्ता बेगम भी मम्मा से मिलने आई थी। उस वक्त भी शांजे का हंसता चेहरा शहीर को हैरत में मुब्तला कर गया था। मानना पड़ेगा, बहुत मंजी हुई अदाकारी करती हो। शान से गुजरती गाड़ियों पर नजरें जमाए बैठी थी जब शहीर ने जहर में बुझा तीर मारा। वो ना समझी के आलम में गर्दन मोड़कर उसे देखने लगी। तुमने किसी को अपने साथ होने वाले जुर्म की कहानी नहीं सुनाई? इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट सजाकर कहा। शांजे ने गहरी नजरों से उसे देखा। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं और मैं अपना लिबास उधेड़कर लोगों के सामने खुद को बरहना करने की कायल नहीं हूँ। ओह! शहीर ने विंड स्क्रीन से नजर हटाकर बज़ाहिर दाद देने वाली नजरों से देखा, मगर उससे झलकता इस्तेहज़ा शांजे को आग बबूला ना कर सका। आपने भले सबक सिखाने के लिए मुझसे शादी की है, मगर मैं ये कहूँ कि मैं खुद सबक सीखना चाहती हूँ तो? शांति के मुतलल अंदाज पर शहीर से कोई जुमला ना बन पड़ा। गलती मेरी है, मैं मानती हूँ। हैसियत और ताकत के नशे में चूर होकर आपकी ख्वाहिश की। आपको पाने का अंदाज भले गलत हो, मगर मेरे जज्बे खरे हैं। उनमें खोट आपको ढूंढे ना मिलेगा। मुझे आपसे पहली नज़र में शदीद मोहब्बत हुई और उसने जुनून का रूप धार लिया। आपके नाम से बन के मोहब्बत की जड़ें मजीद गहरी हो गईं। कल रात की आपकी हरकत के बाद भी मैं अपने जुनून में रत्ती बराबर फर्क नहीं पाती। शांजे का लहजा ठोस था। वो अपने जज्बों की तरह सच्चाई से गोया थी। मैं तुम्हें इतना जिज कर दूंगा कि जिस मोहब्बत का तुम ढिंढोरा पीट रही हो, कल को खुद उसकी नफी करोगी। शहीर ने चिरागपा होकर कहा। मैं जुबान की पक्की हूँ, हमें भी देखना है तू जालिम कहाँ तक है। शांजे ने मुस्कुराते हुए कहा। शहीर मजीद आग बगोला हो गया। गंगा उल्टी बहने लगी। धान पान सी कम उम्र लड़की जुनून आंखों में बसाए मोहब्बत का राग अलापते उसे चैलेंज कर रही थी। जो गुस्सा कोलन वो शांजे के अंदाज में देखना चाह रहा था, वो खुद जिल्लाहट का शिकार हो गया था। वो पुरसकून झील बन गई थी। घर आकर वो किचन की तरफ बढ़ गई। सूप और दूध का गिलास लेकर फातिमा के कमरे में आई तो शहीर भी मौजूद था। वो दोनों बातें कर रहे थे। लाओ मैं खिलाऊंगा। शहीर ने ट्रे उसके हाथ से ले ली। शांति भी वहीं बैठ गई। फातिमा इनकारी थी। शहीर बातों में लगाकर खिला रहा था। शांति के लिए बहुत खुशगवार लम्हा था। शहीर भाभी बहुत अच्छी हैं, फातिमा ने उसे मुस्कुराती नजरों से देखते कहा। हाँ, इसे काला जादू भी आता है जो इसने आप समेत सब पर कर दिया। उसने बज़ाहिर मुस्कुरा कर कहा, मगर लहजे की काट पर शांति मुस्कुरा दी। उसे खबर नहीं थी उसका पुरस्कून अंदाज उसे जिज कर देगा। चोर की दाढ़ी में तिनका के मुतरादिफ। सूप कैसा लगा आपको? मैंने जाने से पहले आपके लिए बनाया था, वो प्यार से पूछ रही थी। उसकी मासूम सी हसीन सूरत फातिमा बहुत अच्छी लगी थी। शहीर से जुड़ा हर बंदा उसे अजीज तर था, जाने वो मोहब्बत की किस मंजिल पर थी। बहुत मज़ेदार है। चिकन के साथ जब क्रंच वेजिटेबल का टेस्ट मुंह में घुलता है तो मज़ा दुबाला हो जाता है। फातिमा ने दिल से सराहा। दलिया भी बहुत टेस्टी था। आपको पसंद आया? कल से मैं खुद आपके लिए खाना बनाऊंगी। शांजे ने आगे का प्लान बताया। शहीर लंबी सांस भर के रह गया। हकीकतन वो गुस्सा दबा रहा था। शहीर का सेलफोन बजने लगा। वो बाउल उसे पकड़ाकर कमरे से निकल गया। शांजे ने बाकी का सूप पिलाया। वो दूध पीने से इनकारी थी। शांजे ने बहलाकर वो भी पिला दिया। मुझे नींद आ रही है, जमाई लेते फातिमा ने कहा तो शांजे गुड नाइट कहती कमरे से निकल आई। मुलाजिम भी अपने क्वार्टर्स में जा चुके थे। वो किचन में गंदे बर्तन रखने आई तो कुक ग्रीन टी बना रहा था। किसके लिए बना रहे हो? शहीर साहब के लिए। मैम आप ये ना करें, मुलाजिम है काम के लिए। इशारा गंदे बर्तन की तरफ था। वो जिस घराने से ताल्लुक रखती थी मुलाजिम भी वाकिफ थे। सुबह से उसके अंदाज पर हर कोई हैरत का इजहार कर चुका था। कोई बात नहीं, लाओ मुझे दो, मैं ले जाती हूँ। कुक टी बैग डालकर चाय ले जाने लगा तो शांजे ने अपनी खिदमत पेश की। सर बुरा न माने, वो हिचकिचा रहा था। कुछ नहीं कहेंगे, मैं कमरे में ही जा रही हूँ। तुम सारे घर की लाइट्स वगैरह देख लेना, मुझे अभी इतना पता नहीं है यहाँ की चीज़ों के बारे में। शांजे की बात पर कुक खड़ा मुंह तक रहा था। सुबह क्या रूटीन है तुम्हारी? शहीर साहब 8 बजे नाश्ता करते हैं, मैं 7 बजे उठ जाता हूँ। कुक के बताने पर वो सारी रात चाय का मग उठाकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। कमरा बिल्कुल अंधेरा था। एलईडी की रोशनी में उसने देखा वो पुस्ते तकिया लगाए नींद दराज था।
آپ کی گرین ٹی। उसने साइड टेबल पर मग रख दिया। मासियों वाले काम भी आते हैं तुम्हें? झाड़ू, पोंछा, कपड़े, बर्तन? शहीद ने खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहा। नहीं आते, आपकी ख्वाहिश है तो सीख लूंगी, उसने कानों पर टॉप्स उतारते कहा। बेड के आगे से गुजरकर उसे ड्रेसिंग रूम की तरफ जाना था। चेंज करने के ख्याल से वो आगे बढ़ी थी। बड़ी फरमाबरदार बीवी हो। शहीर गुस्से से पागल होने लगा। शांति की मुस्कुराहट ने जल्दी पर तेल का काम किया। सराह रहे हैं या आप पूछ रहे हैं? वो रुककर पूछ रही थी। ब्लू सूट में सजी संवरी मेहंदी से रचे हाथों पैरों के साथ खड़ी थी। अजीब सी महक उसके अंदर आते ही फैल गई थी। जवाब ना पाकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी। शहीर ने बाजू मोड़कर कमर से लगा दिया। क्यों चिढ़ा रही हो? वो बच्चों की तरह पूछ रहा था। तकलीफ के बावजूद शांति को हंसी आ गई। आप खुद चिढ़ गए हैं अपने प्लान के फेल होने पर। शांति की सच्चाई से कही बात ने शहीर को बदहवास कर दिया। मेरा प्लान कभी फ्लॉप नहीं होगा। सुना तुमने? जो सुकून तुम्हारे अंदाज में है ना, मैं उसे रहने नहीं दूंगा। तुम रोगी, तड़पोगी, सिसकोगी रिहाई के लिए। बाजू छोड़कर शहीद ने उसे बालों से पकड़कर खींचा था। वो बेड पर गिर गई। अगर मेरे रोने, तड़पने, सिसकने से आपको सुकून मिलता है तो आपकी खुशी के लिए मैं ये भी करने को तैयार हूँ, लेकिन रिहाई के लिए कभी नहीं, किसी सूरत नहीं। बालों को चेहरे से हटाते उसकी आंखों में आंखें डाले बोल रही थी। जितनी आपको मुझसे नफरत नहीं होगी उतनी मोहब्बत है मुझे आपसे। आपका कोई अमल मेरे जुनून को बर्बाद नहीं कर सकता। कोई अमल मेरे जुनून को बर्बाद नहीं कर सकता। वो चट्टान बनी हुई थी। शहीर को उस लम्हे अपनी हार लगी। और हार किसे अच्छी लगती है? तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम्हारा वास्ता किस शहीर से पड़ा है। अपनी तरफ खींचते शहीर ने सर्द लहजे में कहा था। शांति ने अपनी हर चीख को सीने में दबा लिया था। सबकी चीख सीने में दफन हो गई थी। मातम गुनाह दिल्ली है। सब हॉस्पिटल से घर लौट आए थे। रेहान की ट्रीटमेंट हो चुकी थी। सब जिंदा लाश लग रहे थे। अगवा की रिपोर्ट लिखवाते तो किसके खिलाफ? सब अपनी बेबसी पर जर्दोरंज थे। नज़ीर साहब के तो फैल कई एक पड़ोसी को इल्म हो चुका था और सुबह होने तक यकीनन पूरे मोहल्ले में जंगल की आग की तरह ये खबर फैल जाती। मेरी आंखों के सामने वो लोग अरूश आपी को ले गए। रेहान अपनी कम उम्री और अरूश को बचा ना पाने की नाकामी पर सिसक रहा था। वो जोश में पैर पर जोर देता तो बैंडेज गीली होने लगती। हयात साहब को चुप सी लग गई थी। क्या हम यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? सारिम गुस्से से बोला। दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। सब दरवाजे की तरफ भागे। अरूश को दरवाजे पर मुर्दा हालत में देखकर एक बार फिर सबकी चीख निकल गई। सारिम ने बाहर निकलकर देखा, गाड़ी दूर जा चुकी थी। बंद करो आवाजें, क्यों अपनी बर्बादी की दास्तान सबको सुना रही हो? हयात साहब ने शकीला को डांटा। सब अरूश को अंदर ला रहे थे। मोहल्ले के दरवाजा खुलने शुरू हो गए थे। अरूश के वजूद से आया था कि चंद घंटे में उस पर क्या कुछ बीत चुका है। इसे हॉस्पिटल ले चलो, हिना ने दहल कर कहा। हॉस्पिटल गए तो मजीद तमाशा बनेगा, फिर मीडिया के चक्कर। सानिया ने आने वाले हालात से आगाह किया। सब खामोशी से उसे होश में लाने के जतन करने लगे। उसकी सिसकियां बेहोशी में भी सबके दिल में चुटकी ले रही थीं। सारी मुड़कर सहन में आ गया। आंसू की तार, दर्द की तार उसकी आंखों से बह रहे थे। खामोश आंसू आंखों से बहकर तकिए में जज्ब होते रहे। सुबह शहीर फातिहाना अंदाज में उसे देख रहा था। वो नजरें मिलाने के भी काबिल न थी। जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था। बुखार ने भी आ लिया था। कारपेट पर सोने की वजह से पहले ही बेआराम थी। उसमें उठने की सकत ना थी। शहीर तैयार होकर जा चुका था। आंसू का कतरा बाएं आंख से निकलकर तकिए में जज्ब हो चुका था। लब मुस्कुरा रहे थे मगर आंसू भी बह रहे थे। काफी देर लेटे रहने के बाद वो हिम्मत करके उठी। फ्रेश होकर नीचे आई। बच्चों ने नाश्ता तैयार कर लिया? मुलाजिम के सवाल का जवाब देते इस्तफसार किया। बच्चों ने नाश्ता कर लिया? मुलाजिम के सवाल का जवाब देते इस्तफसार किया। बीबी जी लॉन में हैं, कह रही थी आपके साथ नाश्ता करेंगी। शहीद साहब का भी पूछ रही थी। मैंने बता दिया वो जा चुके हैं। मुलाजिम तफसील गोश गुजार कर रहा था। ओके, तुम मेरा और बच्चों का नाश्ता लॉन में ही ले आओ। घर में कोई बुखार की दवा हो तो वो भी लेते आना। मुलाजिम को हिदायत देकर वो लॉन में चली आई। पेड़ के साए में फातिमा कुर्सी पर बैठी कबूतरों को देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम। उसने पीछे से गले में हाथों की माला डालकर बेसाख्ता फातिमा के गाल चूम लिए। बस सलाम। उसने मोहब्बत से उसके हाथ थामकर उसे सामने किया। पिंक सूट में बुखार के बावजूद बहुत निखरी निखरी लग रही थी। तुम्हें तो बुखार है। फातिमा ने हाथों की हरारत के बाद माथे पर हाथ रखा। बस थोड़ा सा, आप फिक्रमंद ना हो, मैंने करीम को दवा देने का कहा है। उसने मुस्कुराते हुए कहा। फातिमा किस कदर उदास थी। खामोश नजरों से कबूतरों को देख रही थी। मम्मा डैडी को मिस कर रही हैं? फातिमा ने इस बात में सर हिलाया। वालिदैन साथ ना हो तो कितना अकेलापन लगता है ना। खौफ आता है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। तुम्हें पता है, एक बार खो गई थी, बहुत मुश्किलों से घर वालों को मिली। वो शायद बचपन का कोई वाकया बता रही थी। चेहरे पर डर था। वो यकीनन सबकी बहुत लाडली थी। तभी मम्मा डैड की कमी पर रंजीदा थी। आप कब अकेली हैं? वो तो सबसे आला मुकाम में हाजिरी देने गए हैं, हम सबके लिए बहुत सारी दुआ करने। और फिर शहीद हैं, मैं हूँ। शांति के समझाने पर वो मुस्कुरा दी। तुम्हारे अंदाज और लफ्जों में बहुत मोहब्बत है। फातिमा ने छेड़ा। शांति मुस्कुराई। इस मोहब्बत के हाथों रात उसने बहुत बड़ी चोट खाई थी। मुलाजिम नाश्ता ले आया। वो दोनों खुशगपियों के साथ नाश्ता करने लगी। शाइस्ता बेगम की कॉल आई थी। हफ्ता हो चुका था उससे रुखसत होकर आए। वो उन सबसे मिलने एक बार भी नहीं गई थी। वो गिला कर रही थी। मम्मा डैड नहीं है तो मैं घर से नहीं निकलती। फिर बच्चों हैं, वो भी घर में ही रहती हैं तो उनको कंपनी देने के लिए और कोई होता नहीं है। शहीद लेट घर आते हैं, वो उन्हें समझा रही थी। तो तुम नौकर हो उनकी, जो अपनी बेटी की देखभाल तुम्हें सौंप गए हैं वो लोग? शाइस्ता बेगम बरहम हुई।
मॉम, मुझ पर कोई रोक टोक नहीं है। अब यकीन करें, मेरा खुद दिल नहीं चाहता बाहर जाने को। यूं लग रहा है मैं किसी पनाह गाह में हूँ। ये मेरा घर है। हमारे घर में तो हर वक्त हलचल, सिक्योरिटी गार्ड के जूतों की धमक, ना प्राइवेसी ना अपनापन, सब मसनूई लगता है। डैड भाई अक्सर घर से दूर दौरों पर होते हैं। आपकी भी सोशल एक्टिविटीज हैं। हमारे घर में एक दूसरे के साथ बैठने का वक्त किसके पास होता है? हर किसी की अलग दुनिया है। और कोई बुराई नजर आई हो तो वो भी कह डालो। शाइस्ता बुरा मान गई। अच्छा, नाराज ना हो, मैं जल्द आऊंगी, शांति ने बहस खत्म करने के ख्याल से लगावट से कहा। ठीक है, भले तुमने अपनी मनमानी कर ली, लेकिन तुम ये ना भूलो कि नौरोज अली खान की बेटी हो। तुम्हें कहा भी था कुछ गार्ड्स अपने साथ ले जाओ, मगर तुम ना मानी। अब भी अकेली कहीं मुंह उठाकर ना चली जाना। हमारे दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा हैं। तुम्हारे डैड आ जाएं मीटिंग से, फिर करती हूँ तसल्ली से तुम्हारे लिए बात। शाइस्ता गोया थी। उसी वक्त शहीर यूनिफॉर्म में दाखिल हुआ। सामने दीवार गिर अपनी तस्वीर देखकर एक लम्हे को उसके कदम झटके। शादी से पहले शांति ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था और आज उसने पूरी भी कर ली थी। हेड उतारकर उसने साइड पर रखा। अस्सलाम वालेकुम। सेल फोन कान से हटाकर उसने सलामती भेजी। जवाब दिए बगैर शहीर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। शांति ने फोन कान से लगाया। शाइस्ता बेगम की बात जारी थी। शहीर हाफ टी शर्ट और ट्राउजर में वापस आया। वो कुछ निढाल सा था। शांति ने बाद में बात करती हूँ कहकर कॉल काट दी। ये क्या हुआ? फोन साइड पर रखकर वो उसके करीब आई। शहीद के बाजू पर बैंडेज बंधा हुआ था जो खून से भीग चुका था। कैसे हुआ ये? शांति फिक्रमंदी से उसका बाजू पकड़कर इस्तफसार कर रही थी। शहीद ने हाथ झटक कर बाजू चढ़ाया। अपने काम से मतलब रखो, दुरुस्त लहजे में कहा। शहीर, बहुत खून बह रहा है, डॉक्टर को बुलाऊं? परेशानी उसके चेहरे से जाहिर थी। क्यों चिल्लाकर दिमाग खराब कर रही हो? कहा ना, वो उसे घूरने लगा। अगर आपने नहीं बताया तो मैं बच्चों को बुलाती हूँ, उनको बताएंगे ना। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। पागल लड़की, इधर आओ, शहीर ने गुस्से से कहा। वो उल्टे पांव आ गई। ऑपरेशन में क्रॉस फायर में गोली लग गई। ऑपरेशन मुतासिर ना हो इसलिए किसी को नहीं बताया। जब कामयाबी मिल गई तो बहते खून पर सबकी नजर पड़ी। अस्पताल से ही आ रहा हूँ, गोली निकल गई है, बैंडेज चेंज करूंगा। करीम फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ रहा है, बस या और कुछ? वो गुस्से से तफसील गोश गुजार करने लगा। फातिमा के नाम से डर लगा था, अगर उसने देख लिया तो परेशान हो जाएगी। आपको फौरन ट्रीटमेंट करवाना था ना, कितना खून बह गया होगा और अब भी बह रहा है। वो रो पड़ी। शहीद सर पकड़कर बैठ गया। करीम फर्स्ट एड बॉक्स ले आया था। गर्म पानी वॉशरूम से लाकर वो बैंडेज खोलने में शहीद की मदद कर रहा था। शांति सर पर खड़ी थी। 3-4 टांके भी आए थे। जख्म गहरा है साहब जी। करीम को भी फिक्रमंदी हुई। ठीक हो जाएगा, उसने लापरवाही से कहा। मैं हल्दी वाला दूध लेकर आता हूँ, आप कुछ खाएंगे? करीम बैंडेज कर रहा था। इस घर में उसने मुलाजिम को भी मोहब्बत से बात करते देखा था। न सिर्फ सामने बल्कि पीछे भी मुलाजिम मालकों के लिए फिक्रमंद रहते थे, क्योंकि यहाँ मुलाजिम को भी इंसान समझा जाता था। डॉक्टर ने दवा दी खाने के लिए। शांति की फिक्रमंदी पर करीम भी मुस्कुराया। इस सारे अरसे में जब वो बैंडेज उतार रहा था, शांति आराम से आहिस्ता बात करती रही थी। यूनिफॉर्म की जेब में पड़ी है दवा, करीम के सामने नरम लहजे में कहा। वो भागकर दवा ले आई। करीम चीजें समेट कर जा चुका था। तुम क्यों सर पर सवार हो? चैन नहीं है तुम्हें? शहीर तकिया बुझ पर लगाने की कोशिश कर रहा था जब शांति ने आगे बढ़कर रख दिया और एलईडी चलाकर रिमोट दिया। आपको तकलीफ हो रही होगी इसीलिए। कपड़े चेंज करते वक्त आपने बाजू को ज्यादा हरकत दी होगी, इसलिए बैंडेज खराब हुआ। वो डॉक्टर बनी अंदाजा लगा रही थी। जी, आपने बजा कहा। नौरोज अली खान की बेटी गलत कह सकती हैं। वो चिढ़ गया। करीम दस्तक देकर अंदर आ गया। हल्दी वाले दूध के साथ ग्रीन टी भी लाया था। शांजे ने दुआ निकल कर खुद दूध का गिलास करीम के सामने रख दिया कि वो इसका लिहाज ही करके पी ले। कुछ بعید ना था वो दवा ना लेता। शांति ने दवा निकाल कर खुद दूध का गिलास करीम के सामने रख दिया कि वो उसका लिहाज करके ही पी ले। कुछ بعید ना था वो दवा ना लेता। नींद में करवट बदलते शहीर की कराह निकल गई तो शांति भागकर उस तक आई। वो सो रहा था। वो शायद गहरी नींद में था दवा की वजह से। तो उसके मुड़े हुए बाजू को उसने बहुत आहिस्तगी से उसकी कमर के नीचे से निकाला था। नरमी से बैंडेज पर उंगलियां फेरी। वो काफी देर खड़ी रही। वो पुरसुकून सो रहा था। सुबह शहीर की आंख खुली तो सामने देखकर वो ठिठक गया। बेड से गाल टिकाए वो बैठी बैठी सो रही थी। बिना आहट किए वो उठने की कोशिश करने लगा। शांति ने पट से आंखें खोल दी। कुछ चाहिए तो मुझे बता दें। उठ खड़ी हुई। वो जल पपोटे गुलाबी आंखें गवाह थी कि वो सारी रात जागती रही है। बिना जवाब दिए वो वॉशरूम में बंद हो गया। उल्टे हाथ से ब्रश करते, फेस वॉश करते। शहीर को काफी तकलीफ हुई थी। तौलिए से मुंह रगड़ता वापस आया तो शांति कमरे में नहीं थी। वो चेंज करने चला गया। टी शर्ट उतारने में उसे दांतों तले पसीना आ गया। शर्ट उठाकर पहनने की कोशिश में किसी ने उसके हाथ से शर्ट ले ली थी। वो शांति थी। सहूलियत से दायां बाजू डालकर उसने बाएं साइड में शर्ट की थी। वो खामोशी से उसकी कारस्तानी मुलाहिजा कर रहा था। आपका नाश्ता मैं कमरे में ले आई हूँ, शर्ट के बटन बंद करती वो बता रही थी। बेहतर होता आज आप ना जाते, आराम कर लेते। घर से निकलते वक्त आयतल कुर्सी पढ़कर निकला करें। मुझे याद नहीं है, बहुत छोटी थी जब कुरान शरीफ पढ़ा था। मैं फिर याद कर लूंगी तो रोज पढ़कर आप पर दम किया करूंगी। बेल्ट लगाती हुई इतनी सच्चाई से कह रही थी कि एक पल को वो नजर हटाना भूल गया। तुम्हें तो खुश होना चाहिए मुझे तकलीफ में देखकर। खुश दुश्मन होते हैं। मैं तो आपसे मोहब्बत करती हूँ। वो जवाब देने से बाज न आई। दिल भरा नहीं तुम्हारा मोहब्बत से? चिढ़ाया। किसका भरता है? वो उल्टा पूछने लगी। शहीर गहरी नजर उस पर डालता पीछे की तरफ धकेल कर बाहर निकल गया।
शानज़े से शहीर की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। वो बहुत ख्याल रख रही थी। थोड़ी देर के लिए घर जाकर सबसे मिल आई थी। मम्मा डैड से भी बात होती रहती थी। वो अपनी इबादत में मसरूफ थे। शादी को महीना होने वाला था। शहीर की कई बातों के बावजूद वो बहुत खुश थी। फातिमा से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। शहीर भी घर की तरफ से मुतमईन हो गया था। मम्मा की गैर मौजूदगी में उसे घर की बहुत फिक्र थी, मगर शानज़े ने बहुत जल्द घर में अपना सिक्का जमा लिया था। तुम किस किस्म के मखलूक हो? तुम्हें 1000 बार मना किया है मेरे काम ना किया करो। बेइज्जती के बावजूद लगी रहती हो। अना नाम की कोई चीज तुम्हें है या नहीं? शहीर ने एक बार जी छोड़कर कहा था। बचपन से मेरे अंदर ख्वाहिश थी मेरा एक छोटा सा घर हो जहाँ रहने वाले लोग मुझसे मोहब्बत बहुत प्यार करें। मैं खुद उस घर को सजाऊं, संवारूं, खाना बनाऊं और सब खुश होकर रहें। आपकी शक्ल में मेरी बरसों की ख्वाहिश पूरी हो गई। जब पहली बार यहाँ आई थी तब यही सोच लिया था कि मुझे क्या क्या करना है। आपकी डांट फटकार एक तरफ, मुझे आपका ख्याल रखकर खुशी होती है। मुझे उस दिन का इंतजार है जब आप अपने हर काम के लिए मुझे आवाज देंगे। उसकी झिड़कियों के बावजूद बुरा मनाए बगैर अपनी बात करती रही। शहीर तासुब से सर हिलाता बाहर चला गया। वो लॉन्च में बैठी थी जब एक अजनबी अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। अजनबी ने कदरे हैरानगी से सोफे पर टांगे मोड़े बेतकल्लुफ से बैठी शानज़े को देखा था। इतनी ही हैरानी से शानज़े अजनबी को देख रही थी। घर के मुलाजिम से उस लापरवाही की उम्मीद ना थी कि वो किसी अजनबी को इस बेतकल्लुफी से घर में दाखिल होने देंगे। वस्सलाम। शानज़े ने पैर नीचे करते हैरानी से जवाब दिया। फातिमा लंच के बाद सोती थी। शहीर ड्यूटी पर था। ये वक्त वो टीवी देखकर गुजारती थी। ऐसे में अजनबी की आमद हैरान कुन थी। ये शहीर का ही घर है ना? अजनबी ने हैरानी से दरियाफ्त किया। जी उन्हीं का है, लेकिन वो ड्यूटी पर हैं। शानज़े खड़ी हो चुकी थी। आपकी तारीफ? अजनबी हैरत में था। जी मैं शानज़े नौरोज अली खान हूँ, मिसेस शहीर। शानज़े ने मुस्कुराते हुए अपना तारुफ करवाया। इतना तो जान गई थी शहीर के हवाले से आया है। मिसेस शहीर? शादी कब की उसने? अजनबी तो उछल पड़ा। शानज़े भी उसके अंदाज से पजल हो गई। ऐसा कौन सा गुनाह हो गया था? जी 1 माह हो चुका है। सादगी से हुई थी शादी, शानज़े कह रही थी और अजनबी आंखें फाड़े उसे घूर रहा था। आप शहीर के क्या लगते हैं? शानज़े ने सवाल किया, मगर वो उल्टे कदमों वापस पलट गया। शानज़े हक्का बक्का रह गई। करीम? उसने मुलाजिम को आवाज़ दी। वो क्वार्टर से भागा चला आया। जी बीबी जी। अभी अंदर कौन आया था? मैंने तो किसी को नहीं देखा जी, मैं क्वार्टर में गया हुआ था। करीम मुजरिम की तरह सफाई दे रहा था। चौकीदार को बुलाओ। यूं बिना पूछे वो किसी को अंदर कैसे आने देता है, जबकि शहीर भी घर पर नहीं है। शानज़े को गुस्सा आ गया। करीम भाग कर गया और थोड़ी देर में वापस भी आ गया। बीबी जी बाहर तो कोई नहीं है और चौकीदार भी गायब है, शायद सिगरेट लेने गया है। करीम ने अंदाजा लगाया। ये कोई बात हुई? एक अजनबी मुंह उठा के घर में घुस गया और तुम लोगों को कोई खबर नहीं। मैं शहीर से शिकायत करूंगी तुम लोगों की। शानज़े हकीकतन उस पुरस्कार बंदे की गुत्थी में उलझ गई थी। थोड़ी देर में चौकीदार माफी मांगने आया था कि वो गलती से दरवाजा खुला छोड़ गया। वो शहीर साहब से जिक्र ना करे वरना नौकरी चली जाएगी। शानज़े ने उसे मुतमईन कर दिया कि वो शिकायत नहीं करेगी। उसने शहीर से भी जिक्र ना किया। नौरोज अली खान ने कुछ ऐसे काम शहीर के सुपुर्द कर दिए थे जो उसके असूलों के खिलाफ थे। शहीर ने बगैर लगी लिपटी उन्हें इनकार कर दिया था, जिस पर वो भरम हो गए थे। शहीर को कौन सी परवाह थी? अगर आपने ये सोचकर बेटी की शादी मुझसे की है कि मैं आपका मोहरा बनूंगा तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। जान हथेली पर लेकर घर से निकलता हूँ। जुर्म का खात्मा मेरा मिशन है। इस जमन में अगर कभी आपके खिलाफ भी ठोस सबूत मेरे हाथ लगे तो मैं आपको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाने में देर नहीं लगाऊंगा। शहीर ने फोन बंद कर दिया था। नौरोज अली खान को भी अंदाजा हो गया था उन्होंने कितना गलत फैसला किया है। उसका इंतखाब करके अपनी साख और अना को बरकरार रखने के लिए उन्हें बेटी की खुशी को भी बलि चढ़ाना पड़ती तो वो उससे भी दरेक ना करते। और शहीर ने तो इन्हें खुला चैलेंज कर दिया था। वो कुछ सोच रहे थे। शहीर बालकनी में खड़ा था। वो बेहद संजीदगी से सड़क पर नजरें जुमाई कुछ सोच रहा था। फिर उसने सेल फोन निकाला और किसी का नंबर डायल करने लगा। जी भट्टी साहब, मुझे तलाक के पेपर्स तैयार करवाने थे। जी अपने लिए? मैं अपनी वाइफ की मुकम्मल तफसीलात कल निकाहनामे के साथ भेज दूंगा। अचानक होने वाले धमाके पर उसने गर्दन मोड़कर देखा। अचानक अब शानज़े अंदर आ गई थी। वो चाय लेकर आई थी और सारी गुफ्तगू सुनकर खुद पर काबू ना रख सकी। फकत 1 माह हुआ था उनकी शादी को और तलाक? शहीर ने फोन बंद कर दिया। क्यों? शानज़े तीर की तरह उस तक आई थी। चाय के कपों का टूटा शीशा उसके पैर में चुभा था, मगर उसे एहसास ना हुआ। उसने शहीर का गिरबान पकड़ लिया। क्यों कर रहे हैं आप इस तरह मेरे साथ शहीर? आपको मुझसे इतनी नफरत है कि मेरी मोहब्बत भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रही। अगर आपको मेरा अंदाज गलत लगा था तो मेरे वालिद को इनकार कर देते। अब मेरे साथ इतना बुरा नहीं कर सकते। मैं आपके पाँव पड़कर माफी मांगती हूँ। अब भले मुझे सारी जिंदगी इस तरह जलील करते रहे, मगर खुद से जुदा ना करें, मुझसे अपना नाम न छीने। वो सिसक रही थी। शहीर पत्थर बना खड़ा था। आपने तो कहा था मुझे तलाक मांगने पर मजबूर कर देंगे, खुद क्यों पसपा हो गए? बस इतनी ही थी आप में हिम्मत? वो जाने क्या क्या कह रही थी। उसका हाथ झटक शहीर कमरे से निकल गया। शानज़े सिसकती रही। अगला दिन बहुत बोझल था। शानज़े की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। शहीर इतना सख्त है उसे अंदाजा ना था। वो इस नहज पर फैसला करेगा गुमा ना था। मम्मा डैड भी नहीं थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो ये सब क्यों कर रहा है। वो कमरे की तन्हाई से घबरा कर बाहर निकल आई। फातिमा लाउंज में बैठी चैनल सर्च कर रही थी। कहाँ हो तुम? शहीर ने बताया तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर रही हो कमरे में। मैंने डिस्टर्ब करना मुनासिब न समझा। फातिमा ने उसे पास बिठा लिया। वो खामोशी से बैठ गई। अब ठीक हूँ। आप क्या देख रही हैं? फीकी मुस्कान से वो पूछने लगी।
کچھ نہیں، ٹی وی میں آتا کیا ہے؟ فضول بورنگ، بہتر ہے بندہ ٹام اینڈ جیری دیکھ لے۔ فاطمہ نے ناک سکیٹ کے ریموٹ اسے تھمایا۔ وہ چینل سرچنگ کرنے لگی۔ ہر نیوز چینل سے ٹاک شوز آ رہے تھے۔ ارے بھائی، ایک چینل پر آدرش علی خان کو دیکھ کر اس نے ریموٹ صوفے پر رکھ دیا اور بغور سننے لگی۔ اینکر کے سوال پر وہ مدلل انداز میں جواب دے کر اپنی پارٹی کا دفاع کر رہا تھا۔ مخالف پارٹی کا بندہ بولنے کی صحیح کرتا تو آدرش اسے چپ کرا دیتا۔ وہ مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ یہ تو ان کے ہاں روز کی بات تھی۔ یہ عجیب سی آواز پر شانزے نے گردن موڑی۔ فاطمہ کی انگلی اسکرین کی طرف تھی، انداز عجیب تھے۔ یہ میرا بھائی ہے، آدرش علی خان۔ شانزے نے سمجھا وہ اس کا تعارف چاہ رہی ہے۔ فاطمہ نے عجیب نظروں سے شانزے کو دیکھا، اس کی حالت گیر ہونے لگی۔ کریم! شانزے اس سے صورتحال سے بوکھلا گئی۔ فاطمہ صوفے سے فلور پر لڑک گئی تھی۔ اس کی چیخ سے اندر آتے شہیر نے دھوڑ لگا دی۔ شہیر! بچوں کو پتہ نہیں کیا ہوا اچانک۔ شانزے فاطمہ کو سیدھا کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو گئی تھی۔ شہیر نے اسے سیدھا کیا۔ ہوا کیا تھا؟ شہیر دھاڑا۔ شانزے سہم گئی۔ پتہ نہیں، ہم ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ شہیر نے اسکرین پر نظر ڈالی اور کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھ کر فاطمہ کو بازوؤں میں اٹھا کر اس کے کمرے میں لے جانے لگا۔ دفع ہو جاؤ تم یہاں سے۔ کریم سے کہو انجیکشن نکال کر لائے۔ ہدایت دے کر وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ صورتحال دیکھ کر کریم انجیکشن لے آیا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ شانزے دروازے سے لگی کھڑی تھی۔ شہیر فاطمہ کو انجیکشن لگا رہا تھا۔ وہ کسی قدر رنجیدہ تھا۔ چادر فاطمہ کے وجود پر ڈال کر شہیر نے شانزے کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ کھینچتا کمرے تک لایا۔ سامان پیک کرو اپنا اور نکلو فوراً۔ اسے بیڈ پر پھینک کر وہ کھڑا حکم صادر کر رہا تھا۔ اس اچانک افتاد پر وہ پاگل ہونے لگی۔ شہیر، بات کیا ہے؟ بتائیں تو۔ بچوں کی حالت میری وجہ سے خراب ہوئی ہے۔ اب مجھے کیوں الزام دے رہے ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ شانزے ناکردہ گناہوں پر آنسو بہا رہی تھی۔ اگر تم مزید یہاں رکی تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا یا خود کو۔ وہ شدید غصے کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ شانزے اس کا انداز سمجھنے سے قاصر تھی۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ فاطمہ کی طبیعت مزید خراب ہونے کے خیال سے شہیر نے لپک کر دروازہ کھولا۔ اس نے جتنی تیزی سے دروازہ کھولا تو اتنی تیزی سے پیچھے ہٹا۔ روتی ہوئی شانزے اور غصیلے شہیر کو آنے والی ہستی نے بہت غور سے دیکھا تھا۔ شانزے کے آنسو رک گئے تھے۔ دروازے پر کھڑی ہستی اندر داخل ہوئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر شہیر کے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ شانزے بھونچکی رہ گئی۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا ہو رہا تھا؟ اس کی عقل دنگ رہ گئی تھی۔ بہت اچھا خراج دیا تم نے پیدا کرنے کا۔ برائی کو برائی سے ختم کرنے چلے تھے۔ سزا دینے کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ تم کیوں منصف بننے نکل کھڑے ہوئے؟ کیا فرق رہا شہیر رہبان سفیان اور آدرش علی خان میں؟ دونوں نے عورت کو ہی مشق ستم بنایا۔ وہ سب تعصب سے گویا ہوئی تھیں۔ شہیر نظریں ملانے کے قابل نہ تھا۔ آپ کون ہیں اور میرے شوہر پر کس حق سے ہاتھ اٹھایا آپ نے؟ شانزے چپ نہ رہ سکی۔ وہ خاتون کی جسارت پر دنگ تھی۔ یہ بیٹا ہے میرا، میں شکیلہ ہوں۔ شکیلہ بیٹا؟ شانزے حیرانی سے دہراتی شہید کو دیکھنے لگی جو نظریں نیچے کیے بیٹھا تھا۔ لیکن ماما تو حج پر گئی ہوئی ہیں، پھر آپ؟ وہ حقیقتاً بہت الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ شکیلہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ شہیر اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ شہیر ہماری اولاد ہے، حیات صاحب والد ہیں اس کے۔ میری بڑی بہن ثانیہ نے شادی کے 2 سال بعد بیوگی کا زخم سہا تو ہم نے شہیر کو ان کی گود میں دے دیا۔ ڈیڈ میرے والد اور شہیر کے نانا ہیں۔ عروش فاطمہ ہماری اولاد ہے۔ شہیر رہبان سفیان کی بڑی سگی بہن۔ شکیلہ حقیقت آشکار کر رہی تھی۔ شانزے کا سر چکرانے لگا۔ اگر مجھے ذرا بھی بھنک پڑ جاتی شہیر کی حرکت کی تو میں مر کر بھی تم سے شادی نہ کرنے دیتی۔ شکیلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ثانیہ اور ابو سے بھی میں بہت خفا ہوں۔ انہوں نے شہیر کی ایما پر ہمیں لا علم رکھا۔ آنٹی میں اتنی بری تو نہیں ہوں۔ شانزے ان کے آنسوؤں پر رنجیدہ ہو کر خود بھی رونے لگی۔ نہ میری بچی، قصور تیرا نہیں ہے، بلکہ رو تو میں تیرے لیے ہی رہی ہوں۔ یہ کیا کر دیا شہیر نے؟ اسے ساتھ لگا کر شکیلہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ اگر اس دن اچانک سارم عروش فاطمہ اور شہیر سے ملنے نہ آتا اور اسی بہانے اس کی تم سے ملاقات نہ ہوتی تو اب تک بہت بڑا نقصان ہو چکا ہوتا ہمارا میری بچی۔ وہ تو اللہ بھلا کرے بھٹی صاحب کا، جنہوں نے ثانیہ کو شہیر کے فیصلے کی اطلاع دی اور ہم بھاگے چلے آئے۔ شکیلہ آبدیدہ تھی۔ شانزے پر اجنبی بندے کی آمد کا بھید کھل گیا۔ سارم کون ہے؟ شانزے ہر گتھی سلجھانا چاہ رہی تھی۔ سارم میری نند کا بیٹا ہے۔ عروش اور سارم بچپن سے ایک دوسرے سے منسوب تھے۔ بہت خوش باش زندگی تھی ہماری۔ عروش نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تو ہماری بربادی کے دن شروع ہو گئے۔ آدرش علی خان نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا۔ شکیلہ منہ پر ہاتھ رکھے رو پڑی۔ بھائی؟ میرا بھائی؟ شانزے پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ شکیلہ نے مختصراً بربادی کی داستان سنائی۔ 10 سال بیت گئے ثانیہ کو، مگر ہمارے زخم آج بھی ہرے ہیں۔ شانزے کی آنکھوں سے خون بہنے لگا۔ وہ اس جیسی حقیقت سے آگاہ تھی۔ باپ بھائی کی عیاشی کی داستان اس نے بہت سنی تھی، مگر اندازہ نہ تھا کہ انہوں نے اتنا ظلم بھی ڈھایا ہوگا۔ کومل سی عروش فاطمہ کا تصور اسے آنسو بہانے پر مجبور کر رہا تھا۔ ہم نے عروش کا بہت علاج کروایا، لوگوں کی باتوں نظروں سے خائف ہو کر۔ ہم نے ثانیہ کے اصرار پر عروش کو اس کے پاس بھیج دیا۔ اس حادثے میں شہیر کو بھی گولی لگی تھی۔ ہم بہت ڈر گئے تھے، ہمارے بچوں کی زندگی کا معاملہ تھا۔ ہم نے خاموشی اختیار کر لی۔ سارم نے سگے بیٹے
बेटों की तरह हमारा ख्याल रखा। हम साथ रहते हैं। सारिम ही ऑफिस के काम के सिलसिले में आता जाता रहता है तो अरूज से मिलने चला आता है। हमारे लाख समझाने पर उसने शादी नहीं की। वो अरूज की मुकम्मल सेहतयाबी के लिए पुरुउम्मीद है। इस हादसे ने अरूज की दिमागी कैफियत खराब कर दी थी। अब कहीं जाकर वो नॉर्मल होने लगी थी। रात मैंने सानिया से बहुत लड़ाई की फोन पर। वो माफी मांग रही थी कि शहीद ने उसे यकीन दिलाया था कि वो इंतकामन तुमसे शादी नहीं कर रहा बल्कि उसे तुमसे मोहब्बत है और सानिया की वापसी के बाद वो तुम्हें हमसे मिलवाएगा। शांजे की समझ में सारी कहानी आ गई थी। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा कि तुम्हारे भाई का गुनाह तुम्हारे सर मन दिया गया। शकीला ने हाथ जोड़ दिए। शांजे ने उनके हाथ थाम लिए। जितना बच्चों के साथ बुरा हुआ इस हवाले से तो माफी मुझे मांगनी चाहिए थी, अपने भाई के गुनाहों की, जिसने एक हंसते बसते घर को कब्रिस्तान बना दिया। सारिम भाई बज्जो, दो मोहब्बत करने वालों को सजा दी। शांजे सिसक रही थी। उससे अपने भाई की जिल्लत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। शकीला ने उसे चुप करवाया। आओ बाकी सबसे मिल लो। शकीला के कहने पर वो आंसू साफ करती वॉशरूम चली गई। दुपट्टा सर पर ले लो बेटा, हमारे यहाँ बुरा महसूस करते हैं। पहली बार मिल रही हो अपने ससुर से। शकीला उसे हदायत दे रही थी। उसने अपने अंदर सिसकी को दबाया। लाउंज में सन्नाटा था। गालबन शहीर की जी भर के इज्जत अफजाई की गई थी हयात साहब और सारिम ने। वो सुर्ख चेहरे के साथ उठ बैठा था। शांजे सलाम करके शकीला के साथ बैठ गई। हयात साहब की पुरदर्द मुस्कुराहट पर शांजे की आंखों में नमी आ गई। सोबर सा सारिम आज भी मोहब्बत की शमा आंखों में बिसाए इलाही राहों को तक रहा था जहां अरूज फातिमा के हवास ने साथ छोड़ा था। मम्मा डैड सब ने शांजे को कॉल करके माजरत की थी। वो तो इन सब की मुजरिम थी। जाने कैसे लोग थे उससे नफरत करने के बजाय माफी तलब कर रहे थे। तुम बिल्कुल टेंशन न लो, जब तक सानिया नहीं आ जाती हम यहीं हैं। हम शहीर को कोई गलत फैसला नहीं करने देंगे। तुम हमारी बहू हो और रहोगी। शकीला को उस पर तरस आ गया था। मुलाजिम की जुबानी उसकी आदात सुनकर वो गर्विदा हो गई थी। शांजे ने कॉल करके आदर्श को बहुत बुरा भला कहा था। वो भी हकीकत जानकर सन्नाटे में रह गया था कि अरूज शहीद की बहन है। 14-15 साल लड़का कब उसके कद जितना आ गया उसे खबर ना हुई। अल्लाह बहुत जल्द आपसे इसी दुनिया में हिसाब लेगा। आप इंसान नहीं जानवर हैं। मुझे शदीद नफरत है आपसे। मैं कभी आप जैसे से कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। मर गई शांजे आप लोगों के लिए। उसने फोन दीवार पर मारकर तोड़ दिया और खुद दीवार से लगकर बैठती चली गई। इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत, पैसे और ताकत का इतना नाजायज इस्तेमाल, वो किसी से नजर मिलाने के काबिल ना थी। रात गए शहीर कमरे में आए तो वो उसे कहीं नजर ना आई। वो वॉशरूम की तरफ बढ़ा, वो खाली था। ड्रेसिंग रूम भी चेक कर लिया, वो उसे कहीं नजर ना आई। कहीं उस पागल लड़की ने कुछ कर तो नहीं लिया। ये सोच इतनी जानलेवा थी कि शहीर ने घबराकर उसे आवाज देना शुरू कर दी। शांजे एक तड़प थी उसकी पुकार में। सिसकी की घुटी घुटी आवाज पर उसने दीवानों की तरह कदावर पर्दे हटाए थे। वो पर्दे के पीछे कोने में दुबकी बैठी सिसकियों पर काबू पा रही थी। शहीर घुटनों के बल उसके मुकाबिल बैठ गया। भीगा चेहरा, मुसलसल रोने की वजह से सूजी आंखें, नजरें झुकाए उसने शहीर के आगे दोनों हाथ जोड़ दिए थे। मैं बच्चों के साथ होने वाली ज्यादती पर माफी मांगती हूँ। वो सिसक रही थी। दर्द से दिल बंद होने लगा था। आपने इंतकाम लेने का जो रास्ता चुना वो गलत था। आपने मुझे बहुत इज्जत दी जो निकाह करके रुखसत करा के लाए। आपको मेरे साथ वैसा ही सलूक करना चाहिए था जैसे बच्चों के साथ हुआ। अब भी आपका जो फैसला है मुझे मंजूर है। मैं आपको मना नहीं करूंगी। आप मुझे तलाक के पेपर्स भिजवा दीजिएगा ताकि मैं आदर्श अली खान को दिखा सकूं सब आपको तलाक के लिए मना कर रहे हैं। आप जुबानी ये काम कर लें। इनकी बातें ना सुने। ये सब इंसान नहीं फरिश्तों की सिफत रखते हैं। आपको मेरे साथ जो सलूक करके खुशी मिले मैं उफ नहीं करूंगी। लेकिन आपके पास थोड़ा टाइम है। सुबह मैं चली जाऊंगी यहाँ से। अपने घर नहीं जाऊंगी। जिन लोगों के हाथों पर मासूम लोगों का खून लगा हो मैं उनके दरमियान नहीं रह सकती। मैं बेशक इनमें से हूँ मगर इन जैसी नहीं हूँ। यहाँ भी नहीं रहूंगी क्योंकि आप सबसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं हूँ। वो तड़प तड़प कर रो रही थी। शहीर यकटिक उस नाजुक सी लड़की को देख रहा था जो बहुत कम उम्र मगर समझदार थी। वो बिना कुछ कहे खड़ा हो गया। शांजे के आंसुओं में रवानी आ गई। शहीर ने बाजुओं से पकड़कर उसे मुकाबिल खड़ा किया। तुम जहाँ जाना चाहती हो जाओ। शांजे ने बगौर उसे देखा। वो आज भी इतना कठोर था। क्या मुझे साथ ले जाना पसंद करोगी? दोनों हाथों में उसका चेहरा थामे इस्तफसार कर रहा था। शांजे को अपनी समात पर एतबार न हुआ। शहीर ने उसे बेड पर बिठाया और खुद नीचे बैठ गया। बदला, इंतकाम, इन सब ने बहुत आलूदा कर दिया है मुझे। कुछ दिन अपने साथ रख लो ताकि मेरे अंदर भी वैसे ही मोहब्बत के गुल खिल जाएं जो तुम्हारे अंदर खिलते हैं। तुम्हारे पैरों में बेड़ियां डालने निकला था। खबर क्या थी? इन हाथों की लकीरों ने मुझे जकड़ने का इंतजाम पहले ही कर रखा है। हथेली को सहलाते नरम लहजे में कह रहा था। उसके आंसू फिर बह निकले। माजी में हमारे साथ जो जुल्म हुआ वो कम नहीं था। मेरी आंखों के सामने बच्चों को ले गए, मुझे जख्म दे गए। मैं छोटा था, कमजोर था मगर अंदर कोलन थी। इन 10 सालों में बच्चों जितना तड़पी हैं उतनी ही तड़प मैं आदर्श के अंदर देखना चाहता था। मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहता था मगर मैंने सिविल सर्विसेज की पढ़ाई की। मैं इन जैसों के गिर्द घेरा तंग करता जा रहा हूँ और जल्द ही ये कानून के शिकंजे में आएंगे।
इत्तफाकन तुम मिली। या खुदा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे शादी इंतकाम के लिए करूं या तुम्हारी तरफ बढ़ूं। जब तुमने पेशकदमी की तो मैंने तुम्हारी हौसला शिकनी की, मगर तुम बाज ना आई। तुम्हारे वालिद पैगाम लेकर आए। उस वक्त उनका गुरूर घुमंड देखकर मैंने ये सब प्लान किया। मम्मा, सानिया किसी सूरत राजी ना थी। उन्हें शक था कि मैं इंतकामन ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उन्हें मना लिया। शादी भी जल्दी इसलिए की कि उनके वापस आने से पहले मैं तुम्हें आज़ाद करके आदर्श को सच्चाई दिखाऊंगा। सारिम भाई की अचानक आमद और भट्टी साहब ने मम्मा सानिया को इतला देकर मुझे हैवान बनने से रोका। मैं इंतकाम में अंधा हो गया था और इससे कहीं ज्यादा मैं डरने लगा था। मैंने जीतने के लिए बिसात बिछाई थी, मगर तुम रोजे अव्वल से मुझे हरा रही थी। तुम्हारे जज्बे सच्चे थे। तुम वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसा मैंने तसव्वुर किया था। तुम्हें सताकर आदर्श से इंतकाम लेने चला था, मगर मैं हार गया। तुमसे, तुम्हारे जज्बों से। तुम मेरी हर हरकत, हर जिल्लत को मुस्कुराकर मोहब्बत समझकर झोली में समेट रही थी। जिसने सदा हुक्मरानी की हो वो मेरे घर में मिडिल क्लास लड़की की तरह जुट गई, जिसे कुरानी आयात याद ना थी, लेकिन वो मेरे लिए याद करती है। मुझे चोट लगने पर सारी रात मेरे सरहाने बैठी रहती है। अर्श पर रहने वाली को मैंने फर्श की धूल बना दिया, मगर उसने सदा मुझसे मोहब्बत ही की। मेरे जुल्म पर दर्द देने पर आंखें भीगती थी, मगर उसके लब मुस्कुराते थे। मैं चाहूं भी तो उससे अलग होकर नहीं जी सकूंगा। मैं आदी हो गया हूं तुम्हारा। शहीद के नरम गरम लफ्ज शांजे के रस्ते जख्मों पर मरहम बनकर लग रहे थे। आप एक बार मुझसे अपना दर्द शेयर करते, मैं खुद मशके सितम बनने को तैयार हो जाती। वो इंतहाई सच्चाई से बोली थी। शहीद ने उसे खुद से लगा लिया। आदर्श अली खान शांजे की कॉल के बाद डिस्टर्ब हो गया था। अरूश फातिमा उसे बहुत अच्छी तरह याद थी, जिसके मुकद्दर में जिल्लत लिख के उसने गार्ड्स के रहमो करम पर छोड़ दिया था कि वो भी फैज़याब हो लें। उसके अगले रोज वो स्टडी के लिए लंदन चला गया। पढ़ाई के बाद वापस आया तो नौरोज के साथ सियासी कामों में हिस्सा लेने लगा। अपनी पसंद से उसने शादी भी की, मगर जल्द ही बीवी भी दिल से उतर गई और उसने तलाक दे दी। वो अपनी रंगीनियों में खोकर अरूश जैसे ही जाने कितनी लड़कियों को भूल चुका था। शांजे उससे बहुत छोटी और लाडली थी, लेकिन ये कड़वा सच कि शहीद ने इंतकाम के लिए शांजे से शादी की उसे पागल कर गया। वो शहीद के घर के नजदीक था। जोश में वो गार्ड्स को साथ लाए बगैर निकल पड़ा था। उसने जेब चलाते पिस्टल चेक की जो लोड थी। सारी गोलियां शहीद के जिस्म में पेवस करने के ख्याल से वो इर्द गिर्द से गाफिल हो गया था। अचानक 3 मोटरसाइकिल सवारों ने उसकी जीप को घेरे में ले लिया। इससे पहले कि वो संभलता, बाइक पर सवार लड़कों ने फायरिंग शुरू कर दी। फिजा में गोलियों की तिड़तड़ाहट से हलचल मच गई। अनगिनत गोलियां आदर्श अली खान के जिस्म में दाखिल हो चुकी थीं। मोटरसाइकिल सवार रफू चक्कर हो चुके थे। दुनिया को अपने कदमों तले रोनने वाले आदर्श की जीप उसकी कब्र बन गई थी। थोड़ी देर के बाद ये खबर ब्रेकिंग न्यूज बन गई। शांजे के कदम बेसाख्ता अरूश फातिमा के कमरे की तरफ बढ़ गए। अरूश को खुद से बेंचे वो रो पड़ी थी। आपका मुजरिम कैफरे किरदार को पहुंच गया। अरूश नासमझी के आलम में उसे देखती रही, फिर शांजे के आंसू साफ करने लगी कि वो उसका भाई था। शकीला और बाकी सबके लिए भी ये खबर हैरान कुन थी। शकीला और हयात के समझाने पर शहीद शांजे को लेकर आदर्श की आखिरी रसूमात अदा करने गया था। हुकूमत सियासी रहनुमा को सिक्योरिटी देने में नाकाम हो चुकी है। नौरोज अली खान जवान बेटे की मौत पर टूट गए थे, मगर अपना गुस्सा मीडिया के जरिए दिखाना नहीं भूले थे। मम्मा, सानिया और डैड नाना हज की अदायगी से लौट आए थे। अरूश का फाइनल चेकअप करने के बाद डॉक्टर्स मुतमईन थे। अपने मुजरिम को अंजाम तक पहुंचते देखकर वो इस जुनून से निकल आई थी। सारी मीना को भी ले आया था। घर मुकम्मल लगने लगा था। कमरों में घुसकर मूंगफली और कीनू खाते सब एक साथ बैठे तो सालों की बातें जेर बहस आईं। आंटी सारिम भाई को कब दुल्हा बना रही हैं? सबको कॉफी सर्व करने के बाद शांजे अपना मग लेकर अरूश के पास आ बैठी। मुस्कुराती हुई अरूश के लब इस सवाल पर भिज गए थे। इंशाल्लाह इसी हफ्ते, अब और देर नहीं करूंगी, हिना ने बाखुशी कहा तो अरूश उठकर अपने कमरे में चली गई। माहौल में एक बार फिर बोझलपन उतर आया था। सारिम भाई, आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है। आपको बच्चों का खोया हुआ एतमाद बहाल करना पड़ेगा। शांजे ने अकेले में सारिम से कहा तो वो मुस्कुराते हुए अरूश फातिमा के कमरे की तरफ बढ़ गया। वो घुटनों में मुँह छुपाए रो रही थी। अरूश, सारिम अब्बास की प्यार भरी पुकार पर उसकी सिसकी तेज हो गई। आप चले जाएं सारिम, मैं आपके लायक नहीं हूँ। वो दिलगिरफ्ती से बोलकर फिर रोने लगी। जाना होता तो उस वक्त भी तो जा सकता था जब तुम हवासों में नहीं थी। मुझे यकीन था एक दिन तुम मुझे जरूर पहचानोगी। सालों इंतजार के बाद तुम मुझे जाने का कह रही हो। ये इनाम, ये सिला दे रही हो मेरी मोहब्बत का। सारी मुकाबिल बैठ गया। मैं आज भी उन्हीं राहों पर खड़ा हूँ जहाँ तुमने हवास छोड़े थे। मैं रत्ती भर अपनी मोहब्बत और तुम्हारी इज्जत में फर्क नहीं पाता। जिस उम्र में लड़के अफेयर चलाते हैं उस उम्र में मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ के सपने देखे, और आज भी तुम मुझे तही दामन जाने का कह रही हो। सारी अब्बास मोहब्बत का जहान आंखों में बसाए उसकी भीगी पलकों पर नजरें जमाए हुआ था। आपको बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी। अरूश ने उसे बहलाना चाहा। मुझे तुम चाहिए हो और कोई नहीं। मैं अब तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन फिर कभी अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। सारिम कुर्सी से उठ गया। अरूश ने गुजरते हुए सारिम का हाथ थाम लिया। सारिम के कदम रुक गए। सारिम के हाथों पर चेहरा रखे अरूश रो पड़ी। तुम्हारे सारे आंसू मेरे, मेरी सारी खुशियां तुम्हारी। सारी मोहब्बत के आला मुकाम पर फायज था। दरवाजे से लगी शांजे सारी गुफ्तगू सुनकर अंदर जाने लगी। तभी किसी ने उसे बाजू से पकड़कर घसीट लिया। वो मचलती रह गई। शहीद ने उसे कमरे में लाकर दम लिया।
کیا ہے؟ ذرا چھیڑنے دیتے دونوں کو۔ شاہزیں بازو چھڑواتی نروٹھے پن سے بولی۔ شرم نہیں آتی کسی کی باتیں سنتے؟ شہیر گھور رہا تھا۔ نہیں۔ اس کی آنکھوں میں غور دیکھتے وہ سامنے تن کر کھڑی ہو گئی۔ بہت ظالم ہیں آپ، اتنی زور سے بازو پکڑا، دیکھیں نشان رہ گیا۔ شاہزیں بازو سے ہلاتی اسے دکھانے لگی۔ واقعی؟ بازو کا معائنہ کرتے شہیر نے اس کے بال مٹھی میں بھر کر کھینچے۔ شاہزیں نے ہلکی سی چیخ کے ساتھ مکہ اس کے شولڈر پر مارا تھا۔ میری نازک بیوی، میں ایسے ہی رہوں گا، درد دینے والا۔ چڑھایا۔ میں ہنس کر ہر درد سہ لوں گی کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کو مجھ سے پیار کتنا ہے۔ شاہزیں نے مسکراتے ہوئے آسودگی سے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا تھا۔